morning everyone, and today this is going to be the last class of mains 4.0. Yesterday UPSC has done service allocation and few of my students, they sent me texts. Some of them have gotten Indian Audit and Account Services, किसी को मिला है IRS. So I was thinking कि ultimately बहुत सारे लोग, those who are going to write mains, so keep one thing in your mind. If you have sweated enough in the last 2.5 months, for sure you are going to crack this examination. This whole examination, UPSC is all about 1% inspiration, 99% perspiration. जिन लोगों ने भी पसीना बहाया है पिछले 50-60 दिनों में, जिसने अच्छे से पसीना बहाया है, उनका एग्जाम निकलेगा, ठीक है. सो हैव कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस. जो प्रोसेस को फॉलो किए हो इन लास्ट 2 months, हैव कॉन्फिडेंस, एग्जाम आसानी से निकालोगे. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चंस, एड्रेस each part of the questions comprehensively. By the way, tomorrow I'll be taking a mains specific session only at 12 o'clock, जहाँ पे I'll be telling you what to do in the next 14 days. अभी mains examination is going to start from third week of August, तो I'll be telling you कि क्या करना है, ठीक है. Okay, so let's start with this. First is UAPA. Recently multiple news came related to UAPA, ठीक है. नक्सलिज्म already I have covered. यूआपा से क्या क्या न्यूज आया है, यू ऑलरेडी नो. मालेगांव ब्लास्ट केस collapsed because procedure twin conditions under UAPA were not followed. दो twin conditions क्या है? One is requiring both government sanction and independent review, so it was not done. That was the one thing. Second is basically JNU student Umar Khalid, he has been languishing in jail for nearly 5 years. 2020 में जेल हुआ था, अभी 2025 आ गया है अंडर यूआपा. थर्ड इज द केस ऑफ फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर GN साई बाबा. सो GN साई बाबा he remained in jail for nearly 10 years, or last year in 2024 the charges were dropped and within 4 to 5 months he died also. Then there are certain data that shows that half the cases filed under UAPA were pending at various stages of police investigation for over 3 years. Then there are other issues. Low conviction rate. Already means what you call PUCL has found out the data that the conviction rate in UAPA is only 3%. Are you getting? So these are the recent reports and data related to UAPA, and that is why UAPA is important also. Other than whatever I will be teaching you, उसके अलावा आज कुछ लिस्ट बताऊंगा जहां से हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटीज के क्वेश्चंस पूछे जाएं इस बार, ठीक है. सो UAPA. So the UAPA has evolved significantly since its inception in 1967. 1967 में it came reflecting India's shifting approach to internal security and counter terrorism. Aim was, अभी बताया था, it was enacted in 1967 to curb unlawful association and activities which threatens India's sovereignty and integrity. Basically aim क्या था? नाम से ही कर्व है, नाम से ही क्लियर है. Basically in order to control unlawful associations and activities, ठीक है. It is rooted in the Constitution 16th Constitutional Amendment Act, which allowed restrictions on Article 19 subclause 2. पहले से sovereignty and integrity 19 subclause 2 का exceptions में नहीं था. That was added through 16th Constitutional Amendment Act और उसके बाद UAPA आया था, ठीक है. So let us understand important amendments over time. Again let me tell you, this is just an indicative. इसके अलावा भी amendments हुए हैं, but these amendments are the most important amendments. फर्स्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था दैट वाज इन 2004. और 2004 में व्हाट हैपेंड, तुम्हें याद होगा कि व्हेन वाजपेयी गवर्नमेंट वाज एट हेल्म, सो एट दैट टाइम दे ब्रॉट पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है. सो कांग्रेस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील इट, उसको हटा दिया, और उसके जगह दे डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन यूआपा. सो व्हाट हैपेंड, दे इंट्रोड्यूस चैप्टर 4 टू कवर टेररिस्ट एक्ट्स. Specifically within UAPA,
a specific chapter was introduced to cover terrorist act. पोटा सिर्फ टेररिज्म के लिए था, तो उसको हटा के यूआपा में ही चैप्टर 4 was introduced after पोटा repeal and post parliament attack. Second, in 2008 आपको पता होगा 26/11 happened, 26 नवंबर हुआ. So उसके बाद it empowered government to freeze assets. जो लोग those who were involved, so their assets can also be frozen. In addition to that, NIA was created through a separate act and expanded definition of terrorism. Another important amendment that was made in 2012. अब तुमको पता होगा कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ FATF, तो FATF का कंप्लाई करने के लिए यू नीड टू मेक गुड like law related to money laundering, related to terrorist financing has also been covered over there. So FATF compliance के लिए we decided to strengthen provision on terror financing. ठीक है, 2013 में there was global counter terror obligation, so we tried to align UAPA with international treaties, and the most recent and the most consequential, which is right now, which has been challenged in the Supreme Court also. अभी ये केस Supreme Court में है. This was brought in 2019 और वहाँ पे the aim was to cover cyber terrorism and lone wolf attack. Lone wolf attack का मतलब yes, single person without having any association with any terrorist organizations. Suppose someone is reading in what you call reading on computer, or computer के through they have connected to any of the say ISS magazine or Al-Qaeda magazine, and they get like motivated. उनको कोई influence नहीं किया है, just after going through the material he or she has gotten motivation and then committing terrorist act. Influencing others भी इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन influencing other lone wolf attack कैसे होगा? देखो, suppose I'm getting radicalized by myself by reading the material. I'm not handled by someone called ABCD. I have been radicalized by just going through the material, and then instead of that organization I'm carrying out the terrorist attack by myself. अपने आप से फिजिकल अटैक भी रूडिमेंट्री टाइप से बॉम्ब बनाकर, कुकर बम बना के कहीं पे ब्लास्ट कर दिया. आर यू गेटिंग? सो दैट ऑल कम्स अंडर लोन वुल्फ अटैक. सो इट अलाउड डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल एज टेररिस्ट. पहले क्या था कि ओनली ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन नॉट लेवल अ सिंगल पर्सन एज अ टेररिस्ट. बट आफ्टर 2019 you basically allowed designation of individual as terrorist, not just organization, and it also expanded NIA power. ठीक है, तो अभी समझ में आया? This was the most consequential one. ठीक है, पहले only organization could have been basically designated as terrorist organization, but now even individuals can be designated. एम था कि लोन वुल्फ अटैक को किसी भी हालत में रोकना है. ठीक है, core provisions of UAPA. First is declaration of unlawful association, that is covered under section 3. It says क्या? ये बोलता है प्रिंस कि center can declare any association unlawful if it supports secession. मतलब if they want to move, means yes, break the country, or if it disrupts sovereignty, or if it incites disaffection. किसी जगह में पॉपुलेशन को आप भड़का रहे हैं कि इस कंट्री से अलग हो जाओ. सो इन ऑल दोज केसेस यूआपा कैन बी इन्वोक्ड. ट्रिब्यूनल रिव्यू, लेकिन इसमें एक जुडिशियल स्पेसिफिकली एक तुम्हें जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है. क्या दिया गया है पहले समझो. अ ट्रिब्यूनल मस्ट कंफर्म द डिक्लेरेशन विद इन 6 months. वंस गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड any association to be declared as an unlawful association, so that must be confirmed by a tribunal within 6 months. नहीं, ये associations के लिए I'm talking about. ठीक है, लेकिन individual के लिए भी oversights हैं, judicial oversight हैं, but अभी right now that has been challenged in Supreme Court. अभी बताऊंगा उसके बारे में, I'll come to that. ठीक है, so terrorism related provision अभी बताया कि this was introduced in 2004 जब chapter 4 introduce किया गया. So it includes definition of terrorist act, and it intended to threaten any acts which are intended to threaten unity, integrity, sovereignty, security, economic stability even
all would be covered by what? UAPA. Next is terror financing. Terror financing simple मतलब है those who raise or provide fund for terrorist acts. आप टेररिस्ट एक्ट के लिए फंड को रेज कर रहे हैं या आप कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इन द नेम ऑफ, जैसे बहुत सारे लोग जकात का पैसा इनको देते थे। याद करो पाकिस्तान का, खैर इंटरनल सिक्योरिटी में जब पढ़ाऊंगा तो वहां जमाते इस्लामी हुई, फिर लश्कर तोयबा हुआ, इन लोग का सिविल सोसाइटी फ्रंट चलता है एंड दे कलेक्ट मनी। सो दैट हैज आल्सो बीन बैंड इन यूआपा। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, government can freeze funds of individual or entities suspected of terrorism. If an individual who is actually providing fund to them and that money would be used for terrorism, तो उस केस में your personal wealth can also be frozen, or any entities, किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो that can also be frozen। ठीक है। नेक्स्ट इज कोर प्रोविजंस में एक और है डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट्स। अब पहले बताया था कि बिफोर, गुड मॉर्निंग सोनू, आवाज क्या कम है? आवाज कम है क्या? सो डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट, अभी ठीक है? अभी ठीक है सोनू? डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट, आवाज बहुत कम जा रहा है, बच्चे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कम जा रहा है। रुको रुको, फिर नहीं होगा तो काम नहीं चलाना है अभी। ठीक है, यस सर, इट इज फाइन नाउ बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लिया हूं। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, previously you could not have designated someone as an individual, means some individual as a terrorist, but this has been allowed after 2019. So it allows the government to designate individual, not just organization as terrorists. Second important thing is extended detention, section 43D. So it allows detention up to 180 days without filing a charge sheet. So बाकी जो procedural means procedures लगते हैं बाकी सारे detention में, that is not applicable. This is an exception to it. So it allows detention for nearly 6 months without filing a charge sheet. Then there is a restriction on bail. अभी explain करूंगा बताली केस को भी। सुप्रीम कोर्ट जनरली बोलता है कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, है ना? बेल इज द रूल, यस, बेल इज द नॉर्म या रूल एक ही बात है, एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है। सो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बेल इज डिनाइड अनलेस द कोर्ट फाइंड्स प्राइमा फेसी इनोसेंस। जब तक कि कोर्ट को ये नहीं लगेगा कि यू आर इनोसेंट, तब तक bail would not be provided. So a stringent bail condition has been imposed over here. ठीक है। and ultimately presumption of guilt. यहां पे when an accused is presented before the court of law, so there is a presumption that he is guilty. yes, so यहां पे presumption है कि वो सामने वाला guilty है। so burden of proof yes is on the accused, not on the prosecution side। ठीक है। so this is another important aspect। अब issues क्या क्या हैं? पहला issue है vague definition, terms, unlawful activity है क्या, terrorist act क्या है? so these are very much broadly defined, these are very much subjective, consequently they are subjected to interpretations। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से these are interpreted। so this is another problem, this risk the inclusion of even legitimate dissent। in fact मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, जम्मू एंड कश्मीर में recently someone has gotten bail, तो उस केस में यही हुआ था, that guy was criticizing government, उसके ऊपर यूआपा लगा दिया। ठीक है, एक जर्नलिस्ट के साथ ये हुआ है। so
sometimes these terms, since they are very much subjective, so they risk the inclusion of legitimate dissent. Even if you are criticizing government, उसके लिए वो आपके ऊपर UAPA लग जाता है. Are you getting? Second is presumption of guilt, section 43E. अब this shift burden of proof to the accused, ठीक है, and which basically challenge the established principle. Principle क्या है? You are innocent until proven guilty. यहां पे क्या हो रहा है? You are already presumed to be guilty. Are you getting? So that goes against the principle of criminal jurisprudence. ठीक है? Criminal jurisprudence तो यही कहता है ना कि you are innocent until proven guilty. यहां पे उल्टा हो रहा है. You are guilty until proven. ठीक है? Restricted bail provisions अभी बताया. This makes bail nearly possible. उमर खालिद का एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल जीएन साई बाबा का था. So they are still languishing in jail. साई बाबा का तो अब डेथ भी हो गया. 10 साल जेल रहने के बाद nothing was found and ultimately he was released. So the court finds prima facie innocence leading to prolonged pre-trial detention. Next is designation without trial. अभी खुद देखो, किसी इंडिविजुअल को यू आर लेवलिंग टेररिस्ट, सो दैट डायरेक्टली वायलेट आर्टिकल 14, 19 एंड 21. ठीक है? बिकॉज जनरली आप किसी को आप गिल्टी तब बोलोगे ना व्हेन जुडिशरी वुड अलाउ दैट, व्हेन जुडिशरी वुड एडजुडिकेट. यहां पे यू आर डेजिग्नेटिंग सम इंडिविजुअल एज टेररिस्ट. ठीक है? सो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड. So this is another important thing, that is designation without trial. Next is other issues are low conviction rate. अभी बताया कि PUCL का रिपोर्ट आया है कि there is less than 3% of UAPA arrest resulted into conviction between 2015 to 2020. ठीक है? Raise concerns about legitimacy and effectiveness of the charges. मतलब 100 में अगर 3% conviction rate है तो बहुत कम है ना? Second is high pendency. More than 85% of the UAPA cases are pending. अभी खुद समझो, जैसे उमर खालिद का मैंने एग्जांपल लिया, तो इन लोग को प्री ट्रायल स्टेज में ही 4 साल 5 साल से अभी रखा जा रहा है. ठीक है? अभी तक चार्जशीट भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट उमर खालिद, खैर वो केसेस अकेले मैं नहीं देखा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 4 साल 5 साल तक चार्जशीट ही फाइल नहीं होता है. आर यू गेटिंग? So and those people remain languishing in jail. So this is another important thing. Next is misuse and overreach. Preventive detention based on suspicion. ठीक है? So sometimes without concrete evidence. Evidence नहीं है, but you are going for preventive detention based on suspicion. नहीं, UAPA लगा हुआ है उनमें. Preventive detention law अलग है. यहां पे सस्पिशन पे ही UAPA लगा दिया और उसके बाद यू आर ब्रॉट इन द जेल. समझ में? तो वो भी तो एक काउज है. जैसे तुम्हारे पास कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, यू आर नॉट हैविंग, बट देन आल्सो गवर्नमेंट हैज पुट यू इन जेल, प्लेस्ड यू इन जेल. सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली. ठीक है? नेक्स्ट इज टारगेटिंग जर्नलिस्ट लाइक फहाद शाह. ये अभी बहुत रिसेंट न्यूज था. फहाद शाह, ही इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. सो फॉर पॉलिटिकल डिसेंट, are you getting? For political dissent, UAPA case has been filed against him and he was placed in jail. वहां जेल में रहा. अंत में recently, very recently, 4-5 months back, he got the bail. Next is asset freezing and surveillance. It can be done without adequate safeguard. Government ने मन बनाया कि इसका asset को freeze करना है, इसको surveillance पे डालना है. So there is no सेफगार्ड ना राइट नाउ. अभी क्या है कि अगर तुम्हारे एसेट को फ्रीज करेगा तो यू कैन गो टू द जुडिशरी, और जुडिशरी उसमें बोलेगा कि ऐसे नहीं कर सकते हो. बट राइट नाउ अंडर UAPA दे कैन फ्रोज योर एसेट्स बट विदाउट एनी जुडिशियल ओवर मींस जुडिशियल रिव्यू या एडिक्वेट सेफगार्ड. ठीक है? प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड. सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू UAPA. UAPA में सबसे इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो है NIA वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली केस. बस याद रखेंगे वताली केस. ठीक है? वताली केस में ही सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू मेक बेल कंडीशंस मोर स्ट्रिंजेंट. सर अगेन ऑडियो इज वेरी लेस.
बीच में रुका तो हेलो हेलो ओके सोनू सो यस हाँ सो इन बताली केस सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन अ स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड फॉर बेल अंडर सेक्शन 43D सब क्लाउज 5 ठीक है व्हाट हैज हैपेंड नहीं चल रहे वहां आ रहा है ठीक है ओके सो आई एम सो सॉरी थोड़ा सा वो बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज सो लेट्स स्टार्ट यस सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू यूआपा और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट केस है वो बताली का केस है दिस इज द केस वेयर सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली लेड डाउन अ स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड फॉर बेल यहां पे जनरली मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस बेल इज द रूल जेल इज एन एक्सेप्शन बट इस केस में यूआपा के केस में जेल वॉज मेड द रूल बेल वॉज मेड एन एक्सेप्शन सो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम द प्रोसिक्यूशन केस टू बी ट्रू एट बेल स्टेज जब सामने से प्रोसिक्यूशन आएगा प्रोसिक्यूटर्स लेकर आएंगे तो ये समझिए कि जो गिल्ट जो उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं दो चार्जेस आर प्राइमा फेसी ट्रू ठीक है सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट केस सेकेंड केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस 𝐾𝐨𝐧𝐿 केस अभी ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर सुप्रीम कोर्ट हैज मेड बेल कंडीशन स्ट्रिंजेंट लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मतलब ओनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे कैन ग्रांट बेल अंडर यूआपा इफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स विदाउट प्रेजेंटिंग चार्जशीट किसी को आप जेल में डाले हुए हो 3 साल से 4 साल से सो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मे गिव बेल it is on the basis of this judgment now Omar Khalid has gone to Supreme Court ठीक है यही केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि right to a speedy trial is a part of Article 21 so if prosecution fails to present charge sheet within the time तो उस केस में constitutional court may grant bails to the accused ठीक है next is Omar Khalid case arrested in 2020 under UAPA for alleged role in Delhi riots yahan par bail has been denied by Delhi High Court and right now Supreme Court is reviewing the case as of now abhi jab hum baat kar rahe hain so this petition has already been filed in so his petition is already filed in Supreme Court another important case is restoration of guilt by association doctrine आप लोग को नहीं पता होगा अरूप भूया केस है अरूप भूया केस जो है इट्स अ केस ऑफ 2011 उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जस्ट बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन दैट डज नॉट मीन दैट यू आर ऑल्सो गिल्टी बट सुप्रीम कोर्ट चेंज दैट इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मेयर membership of a banned organization is punishable under UAPA if you are a member of any banned organization so that can also be punished that is called restoration of guilt by association yes go ahead तो नहीं तो जैसे ही बैंड हो गया कोई ऑर्गेनाइजेशन लेट सपोज ABCD एक CPI का मायोस्ट का एक ये है फ्रंट है उसको बैन किया गया तो अगर अब तुम्हारे पास ऑब्वियस सी बात है क्रिमिनल लॉज में हमेशा ये ध्यान रखना कि वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता है ठीक है उसके बाद इफ यू आर स्टिल द मेंबर देन
that basically what you call guilt by association लग के you can be charged under UAPA. Next important, ये केस अभी important है which is right now languishing in Supreme Court, केस है साजल अवस्थी. यहाँ पे this guy has challenged the 2019 amendment where an individual can be designated as terrorist. यहाँ पर he questions the amendments compatibility with article 14, 19 and 21 and right now अभी देखेंगे 1 साल में या 6 महीने में कितने दिन में जजमेंट आता है, विल सी. ठीक है. सो दीज आर द मेजर केसेस रिलेटेड टू यूआपा. नाउ व्हाट इज नीडेड? यूआपा का अभी तुमने देखा, देयर आर सर्टेन इश्यूज. सो व्हाट इज नीडेड? फर्स्ट थिंग इज वी नीड लीगल रिफॉर्म्स. अब जितने डेफिनेशंस हैं टेररिस्ट एक्ट्स के, so those definitions need to be made more clear and objective. Subjective definition के कारण होता क्या है? Basically subjective definition के कारण it gives too much discretion in the hands of government, in the hands of police, law enforcement. So first is you need to clarify key definitions. Second is revise section 43D subclause 5, make bail more accessible. ठीक है, बेल को ज्यादा एक्सेसिबल बनाइए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सीइंग देयर आर पीपल, एक तो कन्विक्शन रेट कम है, इसके बावजूद लोग जो हैं 8 साल 10 साल जेल में हैं, तो उसका कंपनसेशन भाई कौन देगा? आप एक बंदा जो है मात्र 30 साल 40 साल में जेल में गया, 40 साल में, और 50 साल तक ट्रायल फेज में ही रहा, 10 साल तो उसका जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो चला गया, प्राइम. सो नेक्स्ट इज मेक बेल मोर एक्सेसिबल. Third is restore judicial review. Require prior judicial scrutiny before designating individual as terrorist. ठीक है, अभी 2019 amendment में they can declare any individual as terrorist. So उसके लिए restore judicial review. अगर if someone has been declared as a terrorist, then that must be made subject to judicial review. मतलब कि within 3 months you need to get permission from judiciary also. ठीक है. इंट्रोड्यूस प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड, टाइम बाउंड ट्रायल्स. अब जैसे एक एग्जांपल था साईं बाबा का, 10 साल तक केस चला. दूसरा एग्जांपल है जो रिसेंट में न्यूज में है, वो था तुम्हारा व्हाट दैट इज कॉल्ड उमर खालिद का था. तीसरा इंपॉर्टेंट है मालेगांव ब्लास्ट केस. मालेगांव ब्लास्ट केस का ट्रायल 18 साल से केस चल रहा था, है ना, से 18 ईयर से. सो गो फॉर टाइम बाउंड ट्रायल, इंट्रोड्यूस स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस टू रिड्यूस pendency. Next is independent oversight body. Create a independent oversight body or review body to monitor UAPA arrests. किसको किसको UAPA के अंडर अरेस्ट किया गया है? Bail decisions and asset freeze to prevent arbitrary use. ठीक है. So these are the important changes. उसके अलावा protection of civil liberties. Many a times journalists, many a times academicians, अभी उनका काम क्या है? जर्नलिस्ट का काम तो यही है बेसिकली टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट. एकेडमिशियंस का काम ही है कि गवर्नमेंट के काम को क्रिटिसाइज करे ताकि और चेंजेस आए. सो मेनी अ टाइम्स देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट मींस पॉलिटिकल डिसेंट इज आल्सो कंसीडर्ड एज समथिंग लाइक यू नो सपोर्टिंग सम काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी. सो इट मस्ट नॉट बी ब्रॉट अंडर यूआपा. सो सेफगार्ड फॉर जर्नलिस्ट एंड academicians, protect free speech. Critique of a state should not be conflicted with terrorism. Both are two different things. ठीक है. Being a part of means having given like fundamental rights under Article 19, you are within your right to criticize your government, and but that should not attract the charges under UAPA. Next is learn from the best. अब कनाडा में जो एंटी टेरर एक्ट है, यूके में एक स्पेशल स्ट्रेटजी है जिसका नाम है प्रिवेंट स्ट्रेटजी. सो बेसिकली दे बैलेंस राइट्स विथ इन्फोर्समेंट, दोनों चीज को बैलेंस करते हैं. ठीक है. डिसेंट इज सेपरेट इशू ऑल टुगेदर. ठीक है. थर्ड इज सिंक्रोनाइज FATF गाइडलाइंस विथ ह्यूमन राइट्स. अब जो FATF का गाइडलाइंस है इन ऑर्डर टू स्टॉप द टेरर फिनेंसिंग, सो बेसिकली सिंक्रोनाइज इट विद द ह्यूमन राइट्स. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट, ये एक बहुत ही दिस इज लाइक यू कैन से आयरॉनिकल ऑल्सो बट एट द सेम टाइम. अभी देखो इंडिया वांट्स टू बिकम, कल रात में मैंने ये बात बोला था, नॉलेज सुपर पावर.
India wants to become Viksit Bharat. One more thing, India is surrounded by many of the inimical neighbors. You are having Pakistan, you are having China, now you are having Bangladesh as a new shore. Are you getting? So, despite not so friendly neighbors, in the last 70 years, we have not tried to have our own national security strategy. So, India is right now not having any national security strategy. But recently, demands have been raised. Okay? So, the demand for a formal national security strategy in India has been raised. The Chief of Defence Staff, ORF में हर्षवी पंत हुए, हर्षवी पंत के अलावा समीर पाटिल हुए, they all have demanded from the government that we should be having national security strategy. उसके अलावा the demand for a national security strategy has also emerged due to increasing regional tension. I'm talking about Operation Sindoor. ठीक है? So in the light of this also, demand for national security strategy has arisen. ठीक है? So पहले समझेंगे national security strategy होता क्या है. National security strategy में 3 components are very much important. याद इसी को रखेंगे. ऐसे definition को याद नहीं रखना है. These 3 core elements. First, what is the objective of your security policy? तुम achieve क्या करना चाहते हो? Second, what threats are there? You need to map all the threats. क्या क्या important threats है? And third, what are the a strategic road map to address them? आपने mapping को threat कर लिया. How those threats can be minimized or mitigated? तो ये these are the 3 core elements of any national security strategy. सबसे पहले आपको objective पता होना चाहिए कि इस security strategy का objective क्या है. Second thing, आपको ये पता होना चाहिए कि what are the threats, and third thing, what are the road map to mitigate them or address them. ठीक है? So it generally works as a guiding framework for coordinating effort across defense, diplomacy, intelligence, cyber and economic domain. What we are talking about? We are talking about whole of nation approach. किसमें? डिफेंस आ तो गया तो आएगा ही टेररिज्म उसमें, है ना? सब तो आएगा. ठीक है? थ्रेट्स मैपिंग में बिल्कुल टेररिज्म आएगा. इसमें इट वुड इंक्लूड बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, साइबर थ्रेट, सब कुछ आएगा. ठीक है? होल ऑफ नेशन अप्रोच, इसलिए तो मैंने बोला होल ऑफ नेशन अप्रोच का मतलब क्या है? एवरीथिंग मीन्स नॉट जस्ट डिफेंस बट एवरीथिंग. इवन सपोज समवन इज स्कैमिंग योर पीपल. मान लो वियतनाम से कोई बैठ के तुम्हारे यहाँ के लोग को, चाइना से बैठ के तुम्हारे यहाँ लोग को स्कैम कर रहा है. सो दैट मनी इज ऑल्सो गोइंग आउट ऑफ योर कंट्रीज इलीगली. सो दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट. तो वो भी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पार्ट होगा. हाँ बिल्कुल आएगा. हाँ हाँ हाँ. नाउ व्हाट शुड बी द कोर एलिमेंट्स ऑफ एन एनएसएस? पहला है इट आर्टिकुलेट्स लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज. आपको लॉन्ग टर्म का अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए एंड दीज आर माय प्रायोरिटीज. सेकेंड थिंग, असेसमेंट ऑफ थ्रेट. अभी जैसे तुमने बोला कि सर टेररिज्म नहीं होगा, बिल्कुल होगा. यू नीड टू इवेलुएट बोथ ट्रेडिशनल दैट इज वॉर, नॉन ट्रेडिशनल चाहे वो साइबर अटैक्स हो, चाहे वो इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर हो, चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन हो, चाहे वो पैंडेमिक्स हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो. एवरीथिंग वुड बी पार्ट ऑफ इट. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी including hunger is also part of it. Yes, hunger, lack of education, poor health. National security strategy is a very comprehensive thing. Are you getting? Whatever is affecting your country, अगर country में hunger है, so automatically your security is in jeopardy. hunger है तो कल जाके लोग revolution कर सकते हैं. कल जाके हो सकता है those people may start supporting extremist organization. So security is a very comprehensive term, Prince. इसको ध्यान में रखोगे. Next is whole of nation approach. It must align military, diplomatic, economic and tech and climate strategies. Next is resource allocation. That is
गाइड्स एलोकेशन ऑफ बजट, कितना पैसा आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए आपको देना चाहिए, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम अमाउंट, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में कितना खर्च करना चाहिए. लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट साइबर अटैक्स, तो you need to have those personnel ready who can stop cyber attacks. Suppose you are talking about hunger, to prevent hunger, तो hunger के लिए you need to make provision for food, है ना. Coordination among different agencies, ensure synergy between ministries, armed forces, intelligence agencies, civil institutions, सबके बीच. क्योंकि अभी जैसे देखो मैंने hunger का एग्जाम्पल लिया, मैंने एजुकेशन का एग्जाम्पल लिया, सो उसके लिए यू रिक्वायर सिविल इंस्टीट्यूशंस, है ना. सो दीज आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. इस बार एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में शायद क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से पूछा जाए, शायद, चांसेस हैं, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं. ठीक है. ग्लोबल एग्जाम्पल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, फर्स्ट इज यूएसए. यूएसए क्या करता है, दे कीप ऑन अपडेटिंग इन देयर एनएसएस. उनका एक एनएसएस फिक्स नहीं है, दे कीप ऑन अपडेटिंग इन ऑर्डर टू शो द कॉन्टेम्पररी रियलिटी. जैसे याद तुम्हें होगा 2022 में, इन 2022 देयर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाज रिलीज्ड बाय बाइडेन. अभी ट्रंप साहब आए हैं, तो ट्रंप 2.0 दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी टू इनकॉर्पोरेट फ्यू न्यू थिंग्स. मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी वो उस स्ट्रेटजी में दिखेगा, प्लस पीस थ्रू अ स्ट्रेंथ एजेंडा. आर यू गेटिंग? सो दिस वुड बी इनकॉर्पोरेटेड. तो अभी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है अमेरिका का, दैट इज अंडर रिव्यू. ठीक है, मतलब हर 4 साल 5 साल पे दे कीप ऑन चेंजिंग. उसी तरीके से चाइना का है. लेट मी टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. तुम्हारे कंट्री का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन योर नेबर पाकिस्तान, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी स्मॉल नेबर, दे आर हैविंग देयर ओन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. उनका एनएसएस है, एंड दैट वाज रिलीज्ड इन 2022. ठीक है. चाइना, इट फॉलोज अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन एंड इट इंटीग्रेट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इडियोलॉजिकल सिक्योरिटी. सब कुछ है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, एंड इडियोलॉजिकल सिक्योरिटी बोलने का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सेविंग ऑफ कम्युनिज्म, आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, आइडिया ऑफ सोशलिज्म. ठीक है. इंडिया जर्नी टुवर्ड्स एन एनएसएस. अब तुम्हें याद होगा कि कारगिल अटैक हुआ था इंडिया पे, उसके बाद अ कमिटी वाज फॉर्म्ड, कारगिल रिव्यू कमिटी, बट दैट कमिटी टॉक्ड अबाउट सर्टेन चेंजेस बट डिड नॉट टॉक अबाउट एनएसएस. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए कारगिल रिव्यू कमिटी ने कुछ नहीं बोला. उसके बाद another committee, Naresh Chandra task force was made. That task force proposed security reforms, but again they also missed national security strategy. Third, General DS Hooda ki draft NSS was the first attempt by India to have our own NSS. General Hooda jo hai, GS Hooda, so DS Hooda, he drafted first NSS. This was the first structured attempt by a military expert, and right now National Security Council Secretariat led drafting process. They are trying to bring national security strategy. ठीक है. Why the demand for NSS has grown in recent year? अभी तुम्हें पता होगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे रिसेंट है, बेसिकली जियोपॉलिटिकल रीजन, जो सबसे रिसेंट है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ. आर यू गेटिंग? सो अपने पास कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है ही नहीं. व्हाट वुड हैपन इन केस टू फ्रंट वॉर वुड हैपन? लेट अस एज्यूम, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि सडनली you are fighting against China, means Pakistan, and China has invaded you from your western side or in the Arunachal area. What you will do? Are you getting? So national security strategy अपने पास है नहीं. So two front war के लिए आप क्या कर रहे हो? अभी क्या है कि अभी we do things in silos. ये भी करेंगे, वो भी करेंगे. एक बार जब comprehensive doctrine रहेगा, so we can arrange our security need accordingly. ठीक है? So Operation Sindoor, tension with Pakistan and China, further increased vulnerability from Bangladeshi side also, from Nepal sides also. So this is one of the reason why we need NSS. Second is cyber security threat. Next Gen exhibition का report है इसी साल का.
नियरली मोर देन 2.3 मिलियन, 23 लाख से भी ऊपर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन 2024 वर रिपोर्टेड एंड वी लॉस्ट मोर देन 1200 करोड़। एमएचए का तो और भयावह रिपोर्ट है, आई विल शो यू साइबर सिक्योरिटी का। ऑपरेशन सिंदूर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, यू बेसिकली सिंदूर या इंटरनल सिक्योरिटी, दे नीड अ कोहेरेंट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। उसके अलावा देखो एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अभी खुद देखो 86% ऑफ सर्वेड कंपनी बिलीव इंडिया नीड्स प्रोएक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट इन एआई फॉर नेशनल सिक्योरिटी। आउट ऑफ 100 कंपनीज 86% फील दैट कि in order to fight against AI led damage we need a national security strategy. उसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ORF, they also argued that NSS demand need to be codified because in order for defense planning करेंगे आगे से we will be having long term vision. Second, inter-agency coordination and strategic signaling. So these are the major reason why national security strategy is needed. But at the same time, there are certain challenges also which you may encounter. First challenge is institutional challenge. You are having fragmented security architecture. अब there are different mandates among agencies. MHA का कुछ mandate है, MOD का कुछ mandate है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का कुछ मैंडेट है। और प्रॉब्लम क्या है, दे ऑल आर ऑपरेटिंग इन सिलोज, हर लोग ब्यूरोक्रेटिक सिलोज में ऑपरेट करते हैं। एमएचए इस डिपार्टमेंट से उतना कोऑर्डिनेट नहीं करता है। आर यू गेटिंग? सो दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज लिमिटेड रोल ऑफ पार्लियामेंट। नेशनल सिक्योरिटी डिसीजंस बेसिकली दे आर केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, सो जनरली पार्लियामेंट में डिबेट के लिए बोलते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ द डे दे मे डू मे नॉट डू डिपेंडिंग अपॉन देम। थर्ड इज जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, मल्टीपल थ्रेट्स। यू आर हैविंग कन्वेंशनल थ्रेट, यू आर हैविंग नॉन कन्वेंशनल थ्रेट नाउ। फोर्थ इज डायनेमिक ग्लोबल ऑर्डर, देयर आर शिफ्टिंग अलायंसेस, यू नेवर नो, USA is together with you, tomorrow they have signed with Pakistan trade deal and now they would be threatening you only. Are you getting? So shifting alliances, great power competition. पाकिस्तान मक्खन लगाने में इतना अच्छा है, परसों उसने नोबेल कमिटी को रिकमेंड किया है कि ट्रंप शुड बी गिवन नोबेल प्राइज। आर यू गेटिंग? अब ट्रंप जो है वो चाहता कैसा है, अगले लीडर को साइकोफैंट, समवन जो कि उसको बटरिंग करे, एंड पाकिस्तान इज गुड एट इट। सो अभी हुआ क्या कि ट्रंप इतना बटर्ड हो गया है कि अब ट्रंप जो है दिल खोल के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग? सो ग्रेट पावर कंपटीशन। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर चैलेंजेस, साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, एंड दैट एक्सपोजेस योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर्स हो गया, दोज आर द थिंग्स। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन लैग, अभी कल ही न्यूज में था MiG-21 के बारे में, इंडिया का इशू, IAF का इशू रिलेटेड टू फाइटर जेट्स से रिलेटेड। तो क्यों है? व्हाई? वन इज प्रोक्यूरमेंट डिले एंड सेकेंड इज वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन वेंडर्स। अगर डिपेंडेंस नहीं रहेगा सो ऑटोमेटिकली देयर वुड नॉट बी एनी लैग इन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, है ना। नेक्स्ट इज यूनिडायमेंशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। अभी जैसे तुम्हें मैंने बोला कि पॉवर्टी वुड आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड। क्यों? तुम क्यों शॉक तुम्हें लगा? तुम अभी तक सिक्योरिटी को सिर्फ समझ रहे हो क्या हार्ड पावर में, डिफेंस में। आर यू गेटिंग? Security is a multi-dimensional concept and it incorporates many things. It is not just about defense. It is also about energy security. It is also about health security. It is also about educational security. It is also about environmental security. So right now we are having unidimensional concept of security. Next is under emphasis on human security. जैसे सिक्योरिटी का पार्ट अभी तक वी हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड डिस्प्लेसमेंट। अब जनरली जो डिस्प्लेस हुआ तो वो सब कुछ उसका खत्म हो गया। नाउ दे हैव अगेन रिटर्न बैक टू द फोल्ड ऑफ पॉवर्टी। अब पुअर हो गए हैं, सो ऑटोमेटिकली समवन हु हैज टेस्टेड अ गुड लाइफ फिर से पुअर हुआ है, तो चांसेस हैं कि दे मे
fall into some kinds of social crimes. पैसे कमाने हैं ना किसी तरीके से. Are you getting? So issues like displacement, pandemics, social unrest, those are not included. ठीक है? So not adequately discussed into NSS doctrine. What should be done? पहला तो है go for codification of a formal NSS document. अब अपने पास एक formal NSS document होना मांगता है. Okay. Second is empower the National Security Council Secretariat. अभी मैंने बताया था कि right now India is having fragmented institutional structure. तुम्हारे पास MHA भी है, तुम्हारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट भी है. सो राइट नाउ व्हाट you need to empower NSC secretariat so that this departmental siloing this could be minimized. Next, parliamentary oversight. ठीक है भाई, national security का matter है, but then there should always be the parliamentary control over national security. So bring mechanism for legislative review to ensure transparency, and ultimately we need civil military synergy. अभी मैंने बताया कि सिक्योरिटी इज नॉट एन यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट. सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बंदूक से सिक्योरिटी देना नहीं है. सिक्योरिटी का मतलब है कि यू नीड टू फाइट एट द सिविलियन लेवल टू. यू नीड टू इंश्योर दैट दे गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, दे गेट एडिक्वेट मीन्स दे गेट गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दे गेट freedom from health, means freedom from what you call epidemics, something like that. They get freedom from non-communicable diseases. So basically what we need a civil military collaboration. ठीक है? Next is two front preparedness. What should be done? That is also a possibility. मैं बार बार बोल रहा हूँ, national security strategy में जब भी बनाओ, so keep one thing in your mind. India needs to remain prepared for two front war. कल जाके अगर पाकिस्तान के साथ कुछ इशू हो रहा है तो हो सकता है चाइनीज में ऑल्सो स्टार्ट सपोर्टिंग. इनफैक्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, दो दे वर नॉट ओपनली डूइंग इट, बट what they were doing, they were running sustained disinformation campaign against India. ठीक है? So that is also war ना. अभी तो we are in the informational age. So information is also a type of warfare. ठीक है? अगर disinformation के through if you are causing civil unrest in the country, so that is also a type of war, है ना? So you need to have two front preparedness, develop deterrence to address challenges coming from both front, China and Pakistan. Second is counter non-traditional threats. जो non-traditional threats हैं, cyber warfare हो गया, pandemics हो गया, climate change हो गया, energy security हो गया, health security हो गया. So इन सब को also we need to counter. Next is border and internal security. You need to modernize surveillance so that जैसे बांग्लादेश साइड से, नेपाल के साइड से बहुत सारे टेररिस्ट इस कंट्री में घुसे हैं, पहले भी घुसे हैं. सो मॉडर्नाइज सर्विलांस, इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. अब जैसे पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ तो वो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान से ही आए थे ना, है ना? सो दैट इज व्हाट बेसिकली, अगर हम सर्विलांस को मॉडर्नाइज करते तो हो सकता है कि वो पहलगाम टेरर अटैक होता ही नहीं, है ना? सो this also needs to be a strengthened national security strategy में. Next, cyber security infrastructure and AI integration. You need to invest in cyber security. You need to invest in AI driven infrastructure to protect critical assets. तुम्हें पता नहीं होगा 2014 में या 13 में there was a systematic attack against इंडियन पावर सेक्टर, और उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे, जो दिल्ली जैसा है वहाँ पूरा 7-8 आवर्स तक पावर कट रहा था. ठीक है? इसके अलावा इन 2020-2021 देयर वाज अटैक अगेंस्ट वन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन तमिलनाडु. आर यू गेटिंग? सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर क्रिटिकल एसेट्स. ठीक है? लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर सर्विलांस. नेक्स्ट इज enhance research and development. You need to enhance R&D, boost indigenous innovation. Indigenous innovation को boost कीजिए so that we do not remain dependent on any other like countries and reduce dependent on foreign technology.
लिंक एनएसएस विथ एसडीजी टू डेवलप रिजिलियंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट। अभी देखो, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म जस्ट विथ गन। एक्सट्रीमिज्म से आप सिर्फ गन से नहीं लड़ सकते हो, रादर यू नीड टू एड्रेस द रूट काउज। रूट काउज क्या है? हु आर द सपोर्टर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म? जिनको पुअर लोग जो हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, और दोज हु आर डिस, इसमें तो इडियोलॉजिकल कमिटेड बहुत कम ही लोग रहेंगे। जैसे सीपीआई का मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभ्यानंद सर का एक बुक है अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड में when he was working as a SP in some particular district, so he wanted to check कि धान का जो कटाई होता है तो उसमें चेक करना था कि क्या वो नक्सल आकर काटते हैं कि लोकल गरीब लोग काटते हैं। एंड ही रियलाइज्ड कि भाई जो लोग कट करके धान लेकर गए लाल झंडा लगाकर, वो कोई नक्सल्स थे ही नहीं। दोज वर पुअर पीपल। नक्सलाइट्स के नाम पे दे वर कटिंग पैडी, दे वर कटिंग व्हाट यू कॉल राइस, वहां से वो पैडी ना उसको बोलते हैं, हाँ, राइस फील्ड से पैडी को वहां से कट करके ले जा रहे थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट कि यू नीड टू एड्रेस रूट कॉजेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इसको, और ये कैसे कर सकते हो? व्हेन यू वुड अलाइन योर एनएसएस विथ एसडीजी। आपका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मस्ट बी अलाइन विथ एसडीजी। अगर वो रहेगा, so automatically you would be able to address the root cause. Next is treat security comprehensively. Security does not just mean national security. Security also mean security at the level of society, security at the level of human being. Are you getting? So treat it comprehensively. Learn from the best. South Africa का मुझे NSS बहुत अच्छा लगा. After post apartheid they brought their NSS and they focused on 3 things. Internal cohesion, अभी मैंने बताया एक्सट्रीमिज्म को ग्रास रूट से रूट करने के लिए क्या जरूरी है? इफ इन सोसाइटी, एनी सोसाइटी, इफ देर आर एथनिक टेंशंस, आपस में वहां भी ब्लैक एंड व्हाइट का एथनिक टेंशन था, सो दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट टू सिक्योरिटी that may cause civil war if it would not be controlled. So they focused on internal cohesion so that black and white के बीच जो issue है those could be resolved. Second, regional peacekeeping and third, human security. इन तीनों elements पे they focused. Next, Brazil का a strategic defense plan, it covers Amazon protection also as part of national security strategy. इसीलिए मैं जानबूझ के ऐसा केस स्टडी लाया हूं. अभी तुम लोग के दिमाग में बस सिक्योरिटी का मतलब क्या है ना? अभी देख रहे हो, Amazon protection has also been incorporated into a strategic defense plan of Brazil. Cyber defense, regional leadership, Australia 2016 Australian Defense White Paper. They have prioritized Indo-Pacific stability. Indo-Pacific stability को prioritize किए हैं, maritime security को prioritize किए हैं, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन को प्रायोरिटाइज किए हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छा मुझे ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का लगा, बिकॉज दे हैव इंक्लूडेड ऑल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन एंड नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जहां से इस बार यूपीएससी कैन टेस्ट यू. साइबर सिक्योरिटी एंड एआई दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, या तो साइबर सिक्योरिटी से रहे या एआई से रहे. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज इंपॉर्टेंट. ये मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट का अपना डेटा कह रहा है. गवर्नमेंट का I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहता है कि इंडियंस आर लाइकली टू लूज ओवर 1.2 लाख करोड़, लास्ट ईयर का ये डेटा है, ओवर द नेक्स्ट ईयर 2025 एंड तक साइबर फ्रॉड में इंडियंस वुड लूज समवेयर अराउंड 1.2 लाख करोड़, विच इज ए ह्यूज अमाउंट. सेकेंड, according to MHA, cyber fraud would alone cost 0.7% of GDP. Are you getting? सोचो 0.7% कितना होता है. अगर तुम 3 ट्रिलियन हो तो 1% उसका निकाल लो, है ना. सेकेंड इज mule bank accounts are one of the significant contributor to the online financial scam. सबसे बड़ा जो contributor है that is mule bank account. हर साल एवरी डे, हर साल बोल रहा हूं, एवरी डे I4C, अकॉर्डिंग टू I4C, एवरी डे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर आइडेंटिफाइंग नियरली 4,000 म्यूल बैंक अकाउंट्स.
लेट मी टेल यू व्हाट इज म्यूल बैंक अकाउंट्स, अगर नहीं पता हो तो। म्यूल बैंक अकाउंट्स आर ओपन बाय अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल। तुमको मैंने बोला कि प्रिंस ओपन एन अकाउंट इन योर नेम, और जितना पैसा आएगा उसका 10% तुमको दूंगा तुम्हारे अकाउंट में। तुमने तो खोल दिया, तुम्हारे अकाउंट से मैं 5 लाख 10 लाख ये किया, जैसे मैंने कहीं से स्कैम किया, एक अकाउंट है ए, वहां से स्कैम किया, आई स्कैम से 5 लाख रुपया, दैट मनी वुड बी ट्रांसफर टू योर अकाउंट। तुम्हारे अकाउंट में मैंने तुमको मान लो बोला 5%, 25,000 छोड़ के 4,75,000 आई विल ट्रांसफरिंग इन अनदर म्यूल अकाउंट। वहां से उसको कुछ दे के फिर अगले में ऐसे करके 10 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स उस पैसे को घुमाना है, और उसके बाद अल्टीमेटली दैट वुड बी ट्रांसफर टू द अकाउंट जहां मैं चाहता था। मान लो कि 5 लाख में मुझे मिला 3 लाख रुपया, बट दैट इज ऑल्सो फॉर फ्री। फंसोगे कौन? तुम। जो पहला अनऑथराइज्ड और ट्रांजेक्शन हुआ वो एज अकाउंट से, द वन हु हैज सफर्ड, 5 लाख जिसका लॉस हुआ वो हुआ है प्रिंस के अकाउंट में, तो कौन फंसेगा? सो यू आर बेसिकली रनिंग म्यूल बैंक अकाउंट, अगर ऐसा केस रहा तो। समझ में आया? So most scams have origin in China or Chinese linked entities. In addition to that, 18 ATM hotspots have also been identified by I4C. क्या है ATM hotspots? These are those areas जहां पे सबसे ज्यादा ATM से फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है? So those have been identified by MHA. In addition to that, MHA has also identified specifically scam compounds, and those scam compounds करता क्या है? They are operating like a call center. वो कॉल सेंटर की तरह ऑपरेट करेगा, एकदम सब कुछ कॉल सेंटर की तरह प्रोफेशनल तरीके से they would be talking, and these scam compounds are operating from Southeast Asian countries such as Cambodia, Myanmar and Laos, which resembles call center and emerged as a hub of इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। वो तुमको नए नए इन्वेस्टमेंट का लालच देंगे, बोलेंगे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यू वुड बी इन्वेस्टिंग दिस मच मनी, और वो पैसा आप जैसे ही इन्वेस्ट करते हो वो पैसा किसी और कंट्री में चला जा रहा है। आर यू गेटिंग? रिसेंटली इन अजरबैजान सच स्कैम कंपाउंड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय इंडियन एजेंसीज। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इफ यू वुड लुक एट द डेटा, सो साइबर सिक्योरिटी हैज इमर्ज्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। देख रहे हो, है ना? 0.7% ऑफ जीडीपी बहुत ज्यादा होता है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, रियल में हो सकता है और ज्यादा हो। अगर ये तो गवर्नमेंट सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमी को काउंट कर रही है, बहुत सारा इनफॉर्मलाइजेशन के थ्रू भी होता है ना? सो अब जैसे मैं बताता हूं कैसे इनफॉर्मल में कैसे होता है। अब मान लो कि यू आर हैविंग कैश, तुम्हारे पास कैश है, तुम इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हो, तुमको मैंने बोला कि तुम 5 लाख रुपया अगर इस अकाउंट में जमा करोगे और उसके बाद कुछ दिन में मैं तुम्हें डबल दे दूंगा। तुमने जमा कर दिया पैसा, अब गवर्नमेंट नहीं जान रही है कि वो पैसा किसका है, वो 5 लाख रुपया किसी ए के अकाउंट में है, वो मनी अगेन ए से बी सी डी ऐसे करके शिफ्ट होता चला गया। रियल में लॉस हुआ है प्रिंस को, लेकिन दिख किसका रहा है लॉस? ए का। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तुमने पैसा अपना जो पैसा कैश में था वो यू डिपॉजिटेड इन वन अकाउंट, वो जो तुम्हारा था, लेकिन अभी कैसा दिख रहा है कि इट बिलोंग्स टू ए, लेकिन रियल में ए का वो है ही नहीं। मेरी बात समझे ना? सो सच काइंड्स आर ऑल्सो हैपनिंग। तो इनफॉर्मल वाला तो हम यहां जोड़ ही नहीं रहे हैं, वी आर नॉट इवन मींस एडिंग देम, ठीक है? सो एक्सटेंट ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया, एक्सटेंट क्या है? फर्स्ट इज अलार्मिंग सर्ज इन साइबर क्राइम। 2024 में nearly 22,000 crores lost to cyber fraud, a 200% increase from rupees 7,400 something in 2023. सोचो 36.37 lakh cyber crime cases, financial fraud cases were reported in 2024 from 2023. गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या क्या है? गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लॉक्ड 9.42 लाख सिम, वैसे सिम जो कि फ्रॉडलेंटली ट्रांसफर कराते थे। तुमने देखा भी होगा एक मिशन जामतारा करके एक सीजन ही आया हुआ था नेटफ्लिक्स पे, है ना? ऐसे भी तुम बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि वेब सीरीज देखते हो, क्योंकि यू हैव यूज्ड ऑपरेशन, वो अपने एथिक्स आंसर में यू हैव यूज्ड व्हाट यू कॉल, कौन सा वो स्पेशल ऑपरेशन का एग्जांपल लियो हो,
So 2.63 lakh IMEI mobile numbers linked to fraud. Launch of okay. So नेक्स्ट इज इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2025, इसी साल ये पब्लिश किया गया है एंड अकॉर्डिंग टू इट 369 मिलियन malware incidents across 8.44 million endpoints have been reported. Rise in AI powered malware, ransomware and supply chain attacks. ठीक है, अब इमर्जिंग चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी खुद देखो, अटैक्स हो रहे हैं, दोज आर AI पावर्ड अटैक्स. ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं दे यूज्ड AI, जनरेटिव AI, और ऐसे मैसेज ड्राफ्ट करेंगे एज इफ कोई हार्वर्ड का MBA वाला बंदा करके आया हो. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो साइबर क्रिमिनल्स दे आर यूजिंग जनरेटिव AI टू क्राफ्ट हाइपर रियलिस्टिक फिशिंग ईमेल्स, और those hyper realistic phishing emails even those cannot be detected by security also. Consequently what happened? Deepfakes, adaptive malware, ये सब कुछ हो रहा है. बेसिकली आपके पास ईमेल आता है, you believe that it's a genuine email and then you respond. Okay. Second is quantum computing threats. This is another important issue. Could break current encryption standard by 2030. Quantum computing threat जो है, it can break current encryption standards by 2030. So must migrate to quantum resistant cryptography. अभी जो क्रिप्टोग्राफी है, जैसे हम लोग इंक्रिप्शन ही देखते हैं, तो दोज कैन बी ब्रोकन थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग, और बाय 2030 दिस इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ अ स्टेट क्राफ्ट. सो उसके लिए वी नीड टू चेंज. नेक्स्ट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वल्नरेबिलिटी. पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में राइट नाउ 700 बिलियन IoT डिवाइसेस हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस. सो दोज स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो वियरेबल्स पहनते हो हाथ में दौड़ने वक्त, स्मार्ट वॉच, connected platforms, so these all are targeted for distributed denial of services attacks and data breaches. ठीक है. next is supply chain attacks. hackers infiltrate system via third party vendors. ये हो चुका है. stuck next, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे उन्होंने आपको न टारगेट किया, they find out some of the vulnerability in third party vendor, उनके थ्रू they entered inside your system. ठीक है. next is ransomware evolution. Now attacks AI enhanced. India saw more than 22,000 crores in cyber fraud losses in 2024 and bottlenecks at talent level. खुद देखो, more than 1400 cyber security startups in India are there, लेकिन when it comes to a scaling of finance, next level पे वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. जो मैंने रिपोर्ट देखा था लास्ट टाइम, out of more than 1400 only 44 cyber startups have been scaled to type B. उसके पहले मतलब बाकी सबको ढंग से फंडिंग भी नहीं मिल पा रही है. that is another important problem. Response of government has focused on cyber security audits. More than 9,000 security audits have been conducted across critical sectors. गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि these are the critical sectors, जैसे पावर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, बैंकिंग, फिनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर हो गया. सो उन सारे जगह पे more than 9,000 security audits have been conducted. Second, sector specific computer security incident response team created. अभी जैसे देखो, गवर्नमेंट has identified कि पावर सेक्टर इज वन वल्नरेबल सेक्टर, financial sector is one vulnerable sector, health sector is one vulnerable sector. So उसके लिए government has created a specific sector specific body जिसका नाम है Computer Security Incident Response Team. ठीक है. Next is we have also launched National Cyber Security Scholar Program. इसी साल लॉन्च किया है. जब तुम IAS बनोगे, so you might get training under this program. So basically it's a government boot camp for top cyber leaders that includes civil servant, specifically IAS and IPS, DRDO scientists, executive from critical sectors. उनके लिए special this program has been launched by government of India this year itself.
Next is capability building by CDAC. CDAC is also developing the capability. अब जैसे कि they are developing indigenous tools for mobile security, they are developing indigenous tools for forensics. Next is cyber crisis management plan. This has been formulated for all government bodies with 205 workshops already been conducted. उसके अलावा push for data sovereignty. आपको याद होगा इस इशू पे वी आर ऑल्सो हैविंग इश्यूज विथ अमेरिका एंड मेनी अदर कंट्रीज. ठीक है, इंडिया बोलता है कि ऑल द डेटा शुड बी लोकलाइज्ड हियर इन इंडिया, डेटा लोकलाइजेशन की बात करता है. इंडिया टॉक्स अबाउट डेटा सॉवरेनिटी. सो एआई ड्रिवन थ्रेट प्रिडिक्शन प्लस रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग. अपॉर्चुनिटीज इन साइबर सिक्योरिटी. फर्स्ट इज एजुकेशन एंड एंट्री पाथवे. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं साइबर सिक्योरिटी में. Right now, these degrees are becoming very popular. BSc in cyber security, MSc in cyber security. हाँ, BTech भी हो रहा है, BSc भी बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर हो रखा है. So this is boosting employability. Right now, in case means there is a high scope for innovation in this field. AI-driven threat detection, quantum safe encryption, Internet of Things security. तो यहाँ पे there is huge scope for innovation. ऑलरेडी अभी हम बहुत पीछे हैं, तो अगर यहाँ पे फोकस होगा सो दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी. स्टार्टअप इकोसिस्टम. अभी मैंने बताया था कि मेनी ऑफ द स्टार्टअप्स आर नॉट एट ऑल स्केल्ड. मोर देन 1400 साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, लेकिन स्केलिंग मात्र उसमें से 3% लोगों का है, 3% स्टार्टअप्स का ही हुआ है. सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. नेक्स्ट इज डिमांड फॉर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट. That is also increasing day by day. When it comes to cyber security analyst, तो उनका भी demand जो है that is increasing, and that is basically they are means providing intelligence led, threat intelligence led का भी जो demand है वो काफी बढ़ रहा है. They are the personal. Next is it boost employability. अभी हालत ये हो गई है, human capital इतना इंडिया में कम है. So those who are graduates with basic IT knowledge, those who are having idea of coding, networking skills, so they are highly desirable. They are highly desirable. उनका employment prospect भी काफी अच्छा है. Next is government initiative. अभी बताया था National Cyber Security Scholarship Program plus CDAC, both are basically training top tier talent. ठीक है. अब but कुछ opportunities हैं, but at the same time there are certain gaps also. पहला gap है fragmentation in institutional framework. फिर वही same चीज, institutional silos. याद करो, CERT-IN का नाम सुनते हो, so CERT-IN comes under MITI. NCIPC, National Critical Information Infrastructure Protection Center, comes under PMO. NCC, NC3 अभी जो बताया था, NC3 that comes under Ministry of Home Affairs. तो अभी देखो CERT-IN MITI को रिपोर्ट करती है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर PMO को रिपोर्ट करती है, और NCCC MHA को रिपोर्ट करती है ना डिपार्टमेंट. फिर से यहां पर भी वही इशू आ रहा है, फ्रैगमेंटेशन है, institutional fragmentation. So that is a problem. So they operate in silos with overlapping mandates. Second is issues of human capital shortage. Human capital shortage का भी issue has not been resolved. Law enforcement lacks cyber forensic capacity. उनको पता ही नहीं है कि पैसा अगर फ्रॉड हुआ है तो उसको कैसे मैप करें, है ना, रिकवर कैसे करें, और मैप भी कैसे करें वो भी उनको नहीं, बहुत सारे लोगों को पता होता है. हैम्परिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशन. नेक्स्ट इज लीगल इशू. आईटी एक्ट 2000. अभी तक अपने यहाँ साइबर फ्रॉड जो है वो आईटी एक्ट के थ्रू ही उसको कंटेन किया जा रहा है. प्रॉब्लम ये है कि आईटी एक्ट हैज बिकम आउटडेटेड नाउ. नाउ वी नीड अ सेपरेट एक्ट फॉर इट. आर यू गेटिंग? सो है ना, बी आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट बीएनएस. एक सेपरेट एक्ट बनाओ इन ऑर्डर टू हैंडल ऑल द साइबर सिक्योरिटी एंड एआई रिलेटेड फ्रॉड. ठीक है, सेपरेट लॉ ही लाओ उसके लिए, या आईटी एक्ट में ही ब्रिंग न्यू अमेंडमेंट, एक स्पेसिफिक चैप्टर इंट्रोड्यूस करो टू डील विद साइबर सिक्योरिटी एंड एआई चैलेंजेस. ठीक है. सो इल इक्विप्ड टू हैंडल थ्रेट्स. अब डीप फेक्स को लेकर आईटी एक्ट में कोई प्रोविजन ही नहीं है.
रश्मिका मंदाना का इशू सुने ही थे। एआई ड्रिवन अटैक, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर कोई आईटी एक्ट में प्रोविजंस ही नहीं है, क्योंकि उस समय आईटी एक्ट जब आया था उस समय दीज वर द थिंग्स दैट वर नॉट एग्जिस्टिंग, सो दिस आल्सो नीड अपडेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ साइबर हाइजीन। बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, मेनी इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेसेस, दे लैक बेसिक साइबर हाइजीन, they lack reporting mechanisms. Are you getting? Nearly 86% of the industry, they don't care about cyber hygiene. ठीक है? And this fuels phishing, identity theft and financial fraud. ठीक है? Next is lack of innovation in India. इंडिया का एक सिंगल साइबर सिक्योरिटी, ब्रेकआउट साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट कंपनी नहीं है. राइट नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन वेंडर्स ओनली. ठीक है, सो वी रिलाई हेवली ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज पुअर मॉनिटरिंग. लेस देन 20% एक्टिवली मैप थ्रेट अक्रॉस डिजिटल इन्वायरमेंट. जो कंपनीज हैं उसमें 20% से भी कम कंपनीज दे मैप ऑल द threats across digital environment, and that makes system vulnerable to supply chain attacks and zero-day exploits. Policy and capacity building in India. National Cyber Security Policy 2013. It was brought by MITI and it focuses on protecting critical infrastructure, critical information infrastructure, and increase in research and development. IT Act 2000, this is the legal backbone for cyber security enforcement. ठीक है. Next is sector specific guidelines that is generally released by CERT-IN. ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है वो लोग सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी लॉन्च करते हैं. NCIIPC भी सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस देते हैं, लाइक फॉर फिनेंस, टेलीकॉम, एनर्जी, हेल्थ केयर सेक्टर्स. ठीक है. उसके अलावा वी आर हैविंग सम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स आल्सो. एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है CERT-IN का. ठीक है, सो दे कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेज टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड देन दे इश्यूज एडवाइजरी, दे सजेस्ट मैंडेटरी ऑडिट्स फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स. अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इज नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सिस्टम. नाम से ही क्लियर है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन infrastructure protection center. So they protect those assets which are vital to national security, चाहे वो public health का हो, economy का हो, power sector हो, I'm talking about even nuclear power. ये सबको basically उनको protect करना इनका काम है. And then we are having cyber crisis management plan which has been mandated for all government departments. पॉलिसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन इंडिया. ठीक है, तो फर्स्ट इज CSIRT, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम. सो बेसिकली अभी मैंने बताया कि सेक्टोरल सेक्टर्स के लिए वी हैव ब्रॉट दिस वन. CSIRT का काम क्या है? ये फिनेंस के लिए देयर इज अ सेपरेट CSIRT टीम, टेलीकॉम के लिए देयर इज अ सेपरेट CSIRT टीम, पावर के लिए देयर इज अ सेपरेट CSIRT टीम. ठीक है, टू इंप्रूव इंसिडेंट रिस्पॉन्स. नेक्स्ट इज मैंडेट एनुअल ऑडिट्स यूजिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है टॉप लेवल का, जैसे सुनते हो ना स्कूल का ISO समथिंग, तो उसी तरीके से देयर इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर साइबर सिक्योरिटी, ISO IEC 27001. सो मैंडेट एनुअल ऑडिट using global standards. Then emphasis on local data storage and indigenous technological development. अगर data would be stored locally, if it would depend on indigenous technology, तो हमारा foreign vendors के ऊपर जो vulnerability है, dependence है, वो भी कमेगा, and consequently our vulnerability would also go down. Next is emerging directions, drafting of a new national cyber security strategy. ये एक नया अच्छा है. Right now we are in the process of drafting of a new cyber security strategy. It will replace 2013 policy. और यहाँ पे there are many focus areas, लेकिन इन focus areas पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि AI integrated threat reduction, detection, quantum safe encryption. ठीक है. Way forward, what we can do? Institutional safeguard. We can establish a cyber security board
and cyber security board would not be just a government body, rather it would be having composition from both government and private sector, and together they can come, are you getting, to coordinate post incident analysis. तो एक तो ये body आप कर सकते हो. Second is you need to update the national cyber security policy which is right now, अभी मैंने बताया कि which is right now being updated, ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन CERT in प्लस NCIIPC, इन लोग को स्ट्रेंथन करो. नेक्स्ट इज लीगल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, मॉडर्नाइज करो आईटी एक्ट को, या ब्रिंग अ स्टैंड अलोन एक्ट, या तो आईटी एक्ट को मॉडर्नाइज करो सो दैट जो न्यू थ्रेट्स हैं, डीप फेक्स का इशू हुआ, एआई पावर्ड का इशू हुआ, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज का इशू हुआ, दोज कुड बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड. अगर नहीं करना है देन गो फॉर अ सेपरेट act altogether. Mandate timely breach disclosure and enforce cyber crisis management plan. Mandate timely breach disclosure, जैसे ही breach हुआ है, so mandate companies to means disclose it to the yes, not only customer but also to the agencies, so that agencies can identify in the very beginning level. ठीक है. Way forward, focus on capacity building and awareness. Integrate cyber security as a core discipline in university curricula. आपके यहाँ ह्यूमन कैपिटल का भी शॉर्टेज है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी शॉर्टेज है. सो व्हाट यू कैन डू, साइबर सिक्योरिटी को यू कैन मेक पार्ट ऑफ अ कोर पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी करिकुला. एक्सपैंड प्रोग्राम्स लाइक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम इवन टू कवर कॉमन पब्लिक. अगर लोग इंटरेस्टेड हैं, इफ दे वांट टू ज्वाइन दैट देन अलाउ देम. नेक्स्ट, प्रमोट साइबर हाइजीन अवेयरनेस, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज साइबर हाइजीन. आज तक मैंने तो स्कूलिंग लेवल पे या कभी यूनिवर्सिटी लेवल पे मुझे नहीं बताया गया कि व्हाट आर द गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस, है ना. सो दैट नीड्स टू बी प्रमोटेड. नेक्स्ट इज इनकरेज पीपीपी टू डेवलप ट्रस्टेड इंडिजिनस सोल्यूशन. अभी हमारे पास कोई वैसा अपना कंपनी नहीं है विच कैन बी सेड कि इट्स अ वर्ल्ड क्लास कंपनी. वन थिंग, right now we are completely dependent on foreign vendors. So what we can do, we can encourage PPP to develop trusted indigenous solution. Second is incentive funding for cyber security startups to scale globally, ठीक है. And third, create a dedicated cyber security innovation fund. एक dedicated cyber security innovation fund लाओ to support quantum safe encryption, to support IoT, Internet of Things security, and to support AI driven threat detection. ठीक है. Go for international collaboration. There are multiple platforms. UNO का एक प्लेटफॉर्म है, ITU का एक इंटरपोल, तो वहां पे we can go for collaboration. कोऑर्डिनेट विथ सर्ट्स ऑफ, जैसे अपना CERT इन है, इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, तो उसी तरीके से हर कंट्री का अपना अपना होगा. सो कोऑर्डिनेट विद देम, उनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए. नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट. अब टारगेट एक अटैक हुआ था 2013 में. हैकर्स यूएसए में क्या किए, दे ब्रीच्ड टारगेट्स नेटवर्क वाया अ थर्ड पार्टी वेंडर. वहां पे उन्होंने डायरेक्टली टारगेट को नहीं ये किया, थर्ड पार्टी वेंडर को उन्होंने कुछ सर्विस दे रखा था, उनमें कुछ वल्नरेबिलिटी थे, दोज वर एक्सप्लॉइटेड एंड कॉन्सिक्वेंटली मोर देन 1.3 मिलियन डेटा ऑफ क्रेडिट कार्ड्स वर लीक्ड. यस, उसकी बात कर रहा हूं, 2013 में हुआ था. सो यूएसए मेड थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट क्रिटिकल. यूएसए ने ओके ठीक है. सो यूएसए ने क्या बोला कि थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट इज क्रिटिकल. नेक्स्ट इज सॉल्व टाइफून एस्पियोनेज. ये तो इसी साल हुआ है 2025 में, वेयर दे टारगेटेड ट्रेजरी डिपार्टमेंट एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ द यूएसए. एंड दिस बेसिकली ये लोग करते क्या है कि सिस्टम को रिमोट कंट्रोल करते हैं, ठीक है. सो वहां से वी कैन लर्न, वी कैन टेक लेसन्स फ्रॉम देयर, ठीक है. टारगेट के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, तुमको पता होगा. स्टक्स नेट का वो दैट वाज आई थिंक दैट हैपेंड इन 2017 या 2018, वहां से भी वी कैन टेक लर्निंग. कमिंग टू एआई, अभी एआई और साइबर सिक्योरिटी दोनों में से एक क्वेश्चन होना चाहिए पक्का, ठीक है. सो अपकमिंग
डिजिटल इंडिया एक्ट इसी साल एक्सपेक्टेड है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस AI specific provision on bias, transparency and accountability. Second is, according to UN 2025 Technology and Innovation Report, India का rank is 10th globally in private sector investment in AI. And third is, AI market in India is projected to reach $8 billion by 2025. Fourth is, according to Trend 2025 Cyber Risk Report, India's cyber risk profile intensifies with AI driven threat. AI is one of the important threat which cyber space is right now encountering. अब जैसे खुद देखो 2024 में 23,000 करोड़ सारे लॉसेस हुए, उसमें से 23,000 करोड़ लॉस ड्यू टू AI enhanced phishing. अभी मैंने बताया था ना जनरेटिव AI दे यूज, ठीक है? यस सोनू, ठीक है. सो 23,000 करोड़ लॉस्ट. तो इतना मेहनत सोनू इसलिए करता हूं ना कि तुम लोग को बेस्ट दो. वो बोलता है कि सर हमेशा ग्लोबल लेवल का केस स्टडीज आप अच्छा लाते हो, ठीक है. सो 23,000 करोड़ लॉस्ट ड्यू टू AI इनहैंस्ड फिशिंग. अभी बताया था जनरेटिव AI इज बीइंग यूज्ड. तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई हार्वर्ड का MBA वाला लिख रहा है मैसेज, ठीक है. Deep fakes and ransomware. Second is, India ranks second globally in email threats. Third is, AI generated deep fakes are used to impersonate officials, spread fake news and manipulate public opinion. And in 2024 European Union became the first important means you can say कि group which adopted AI law, ठीक है. So let us understand चैलेंजेस क्या क्या है. पहला तो चैलेंज है अभी इंडिया का कोई AI लॉ है ही नहीं. राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी AI लॉ. सो दिस इज अनदर फर्स्ट प्रॉब्लम. अभी भी वी आर स्टिल रिलाइंग ऑन IT एक्ट जो कि विच हैज बिकम कंप्लीटली एनाक्रोनिस्टिक, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट. सेकेंड इज ह्यूमन कैपिटल शॉर्टेज. हमारे पास वी आर हैविंग लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड AI प्रोफेशनल्स. बहुत ही कम है क्योंकि बचपन से पढ़ाया ही नहीं गया है बच्चों को, है ना. थर्ड इज insufficient cloud infrastructure and that actually affect scalability and both innovation. Fourth is ethical and social challenges. जो AI मॉडल ट्रेन आप कर रहे हो those are on non-representative data sets. Consequently what is happening, it is reinforcing social, gender and caste biasness. So these are the major challenges by AI. उसके अलावा इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजी कंसर्न. इकोनॉमिक कंसर्न क्या है खुद देखो. इंडिया रिस्क बीइंग अ स्पोक नॉट अ हब इन द ग्लोबल AI रेस. अभी हुआ क्या कि यू आर अ लेट स्टार्टर. तो लेट स्टार्टर जब रहोगे सो यू कैन नॉट थिंक ऑफ बिकमिंग अ हब. USA एंड चाइना आर बिकमिंग अ हब और उस हब का आप एक स्कोप बन के रह गए हो. अंडरस्टूड. हब स्पोक समझते हो ना. साइकिल में तो ये बाइक चलाते हो तो उसमें बीच में ये हब हो गया, ये स्कोप है, स्पोक है. सो इंडिया इज हैविंग रिस्क ऑफ बीइंग अ स्कोप बिकॉज वी आर द लेट स्टार्टर इन दैट फील्ड. सेकेंड इज अनदर प्रॉब्लम इज हाई एनर्जी कॉस्ट्स एंड वीक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट लिमिट्स इंडियाज एबिलिटी टू होस्ट लार्ज स्केल AI operations. नेक्स्ट इज डेटा गवर्नेंस एंड प्राइवेसी. डेटा गवर्नेंस में खुद देखो क्या दिक्कत क्या है कि देयर इन DPDP, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है. सो उसमें उसमें बेसिकली उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल डेटा को एक्सक्लूड कर दिया है. जैसे कि लेट सपोज तुम फेसबुक पे अपना प्रोफाइल पब्लिक किए हो, दोज आर पब्लिकली अवेलेबल डेटा. सो it raises concern about mass surveillance, profiling and deepfake misuse. तुम्हारे फोटो को यूज करके कुछ और लोग कर रहे हैं. Are you getting? And that would not be covered by DPDP Act. Next is data governance and privacy. Risk include identity theft, unauthorized profiling, cyber vulnerability, especially in sensitive sectors, child welfare, health sector. ठीक है. चैलेंजेस. पहला चैलेंज है डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन. डीप फेक्स का बताया था रश्मिका मंदाना का केस,
ऑपरेशन सिंदूर के टाइम डीप डिसइंफॉर्मेशन का बताया. सो देर इज नो डेडिकेटेड एआई लॉ दैट क्रिएट्स लीगल एम्बिग्यूटी. हाउ दिस वुड बी curbed, how this would be challenged. Next is national security vulnerability. Predictive policy policing tools like Delhi camps. Delhi camps के बारे में सुने होंगे. It's a crime mapping, analytics and predictive system. And Delhi camps का बहुत ज़्यादा शिकायत आ रहा है कि it has not been trained on representative communities. Consequently, they are basically more targeting marginalized communities. ठीक है. सो टारगेट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. नेक्स्ट इज सम ऑफ द रिस्क इंक्लूड आइडेंटिटी थेफ्ट, अनऑथराइज्ड प्रोफाइलिंग, साइबर वल्नरेबिलिटीज स्पेशली इन सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक हेल्थ. व्हाट शुड बी डन? पहला चीज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्ट्रेंथन लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क. आपको लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना होगा. यू कैन इनैक्ट separate law to address bias. आप एक separate law लो so that you can address biasness, so that you can address transparency, so that accountability issues can be addressed. Second is you need to provide protection against deepfakes. Deepfakes के खिलाफ आपको protection देना होगा. Surveillance misuse, data exploitation. Next is ब्रिंग अ नेशनल एआई स्ट्रेटजी. अभी तक इंडिया का नेशनल एआई स्ट्रेटजी भी नहीं है, एआई लॉ भी नहीं है. वी आर नॉट हैविंग इवन नेशनल एआई स्ट्रेटजी. सो डिफाइन व्हाट आर नेशनल प्रायोरिटीज. हमारा नेशनल प्रायोरिटीज है क्या क्या? व्हाट आर आवर कंसर्न्स, व्हाट वी वांट टू अचीव. आर यू गेटिंग? सेकेंड, गवर्नेंस वैल्यूज, इंस्टीट्यूशनल रोल्स. So all these should be democratically grounded. Basically democratically grounded का मतलब क्या है कि public should also be consulted. Civil society should also be consulted before making this national AI strategy. Next is build capacity from the school level itself. अभी मैंने बताया कि हम लोग कॉलेज स्कूल्स में पढ़े, कॉलेजेस में आए, but we were not told about साइबर हाइजीन. वी वर नॉट टॉट अबाउट एआई हाइजीन. एआई तो खैर उस समय था ही नहीं उतना. सो राइट नाउ व्हाट वी कैन डू. अच्छा, सेकेंड थिंग इज कि वी आर हैविंग ह्यूमन स्किल शॉर्टेज ऑल्सो, एंड दिस इशू वुड फर्दर एक्सेंचुएट इन द कमिंग फ्यूचर अगर अभी से ध्यान नहीं देंगे. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग कैपेसिटी फ्रॉम द स्कूल लेवल इटसेल्फ. आप एआई लिटरेसी को स्कूल करिकुला में ही प्रमोट करो. आप ग्रास रूट इनोवेशंस को सपोर्ट करो. आर यू गेटिंग? सो दैट इज वन थिंग. नेक्स्ट इज इन्वेस्ट इन इंडिजिनस इनोवेशन. अभी मैंने बोला था कि यू आर हैविंग टू मेनी साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स बट दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट फंडिंग. स्केल अप नहीं हो रहा है. ठीक है. सो गो फॉर स्केलिंग, डेवलपमेंट ऑफ गोल ओरिएंटेड सिस्टम्स. ठीक है. क्रिएट अ डेडिकेटेड एआई इनोवेशन फंड्स. एक सेपरेट इनोवेशन फंड लाओ, एंड दैट फंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. जैसे मोर देन 1400 साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडिया आप देखो कि कौन सा आइडिया इज हैविंग टू मच ग्रेट पोटेंशियल, कौन सा आइडिया शुड बी स्केल्ड so that it can help in serving the national interest, and at the same time scaling. इसका स्केलिंग अगर होगा so we can also export such technology to some other countries. तो वो that is also a source of foreign exchange, forex earning, है ना. So create a dedicated AI innovation fund for startups. Next, go for scaling, development of goal oriented systems. ठीक है, goal oriented systems के लिए जाइए. Next is go for global collaboration. Engage with signatory. India is also a signatory of Bletchley Declaration. So engage with signatories of Bletchley Declaration. सब लोग साथ में आकर बात करो, देखो कि what we can do in order to fight against the menace of AI. क्योंकि AI से तो प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं ना हो रहा है. रश्मिका मंदाना का जो इशू है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत जगह हो रहा है ना. So engage with signatories. Collaborate with international institutions for research standard and crisis response. आपस में do collaboration so that we can have research, we can have proper standard crisis response.
मेक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का बनाना है, जीपीयू का, क्लाउड जो है वो दैट यू नीड टू एक्सपैंड, जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू एक्सपैंड टू सपोर्ट एआई वर्कलोड्स। एआई स्टार्टअप्स को लाने का ये मतलब, एआई स्टार्टअप्स को अगर स्केल कराना है सो यू नीड टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज। आपको क्लाउड का स्पेस को एक्सपैंड कराना होगा, जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी स्केल्ड, प्रोवाइड energy needs of data centers require not just energy but also water, ठीक है, so those needs also need to be provided, ठीक है। अब यहां पर यूपीएससी कैन टेस्ट यू ऑन डिफरेंट ये मींस डिफरेंट एस्पेक्ट। मैंने इन जनरल बहुत ही ब्रॉडन करके इसको कवर किया हूं, बट कीप वन थिंग इन माइंड, UPSC may test you also on the two front war वाला कॉन्सेप्ट पे, वो पूछ सकती है टू फ्रंट वॉर का प्रोस्पेक्ट पे, दे कैन आस्क क्वेश्चंस, वन थिंग। सेकेंड इज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिसेंट काउंटर टेररिज्म पोस्चर ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, like what kind of a strategic message it was trying to give to the world, what kind of positioning, what kind of message it was trying to give to Pakistan and other stakeholders, are you getting? So we'll try to understand, इसको decode करेंगे, ठीक है, कि इंडिया का जो this time counter terrorism posture था, so how it is different from previous time, ठीक है, तो इसको समझेंगे। इस बार एक क्वेश्चन फॉर श्योर यहां से रहने वाला है, यहां से रहे, यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी से रहे, तो ये क्वेश्चन एक यहां से पक्का है कि रहेगा इंडिया का काउंटर टेररिज्म पोस्चर के ऊपर, ठीक है। सो इसका कुछ पॉइंट कैन बी आल्सो यूज्ड इन प्रोस्पेक्ट ऑफ टू फ्रंट वॉर में भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन 2025 इंडियाज काउंटर टेररिज्म पोस्चर इज मोर असर्टिव, मोर स्ट्रैटेजिक एंड इंक्रीजिंगली मल्टी डायमेंशनल। अभी जो अपना काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी है दैट इज मोर असर्टिव, more strategic and more multi-dimensional. However, regional complexities continue to test India's resilience. मैंने ये क्यों किया पहले ये समझो। Reason is कि though you have changed your counter-terrorism posture, but at the same time your regional vulnerabilities are going up. Your means tensions with the regional powers, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, खैर सिचुएशन हैव चेंज्ड, मालदीव्स के साथ चेंज हो रहा है, नेपाल के साथ चेंज हो रहा है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन इश्यूज, ठीक है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज कंटिन्यू टू टेस्ट इंडियाज रिजिलियंस, ठीक है। तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएगा। इस बार जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा इस थीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, ठीक है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what is India, means basically we'll try to understand this, you know, components of this counter terrorism strategy। जो इंडिया ने अभी ये किया, काउंटर टेररिज्म पोस्चर लिया, तो उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी हैव रिस्पॉन्डेड टू टेररिज्म, और उसमें द फर्स्ट थिंग इज ऑपरेशन सिंदूर इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड कि वी वुड मेक सच ऑपरेशन एज द न्यू नॉर्मल। पहले समझो क्या हुआ था। दिस ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड इन May 2025 in response to Pahalgam terror attack that led to the death of 26 Indians. उनका बेसिकली they were asked about their religions and once they told उसको उनको मार दिया गया। सेकेंड इज इंडिया इन रिस्पॉन्स कंडक्टेड precision strikes on terror camps. रिस्पॉन्स में इंडिया कंडक्टेड precision strikes on terror camps in both Pakistan and Pakistan occupied Kashmir. ठीक है। थर्ड इज it showcased India's readiness for multi-domain warfare. We were not just fighting across the border. We were fighting against the informational campaign also, disinformation. So that is showing India's readiness for multi-domain warfare. That include air power. ड्रोन्स उनका अटैक कर रहा था, हम लोग उनको ऊपर ही मार के गिरा रहे थे. That also
about means cyber operations. They were launching disinformation campaign against India, information operations. So one thing is Operation Sindoor, it has defined a new normal. Whenever there would be terrorist attack, so something like precision strikes would be conducted, and India is ready for multi-domain warfare. Second is India ka means S. Jaishankar Sahab, only 8 days back in Rajya Sabha, when there was a debate on Operation Sindoor, so he gave 5 important doctrine on terrorism. ये 5 important याद कर लीजिएगा जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं. Please, those who are writing their mains this year, इस बार जो मेंस लिख रहे हैं, तो अगर in case if anything related to terrorism would be asked, so ये तो ऑपरेशन सिंदूर के कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम कीप इन योर माइंड any question on terrorism must have these 5-point doctrine on terrorism that has been highlighted by government of India. MEA ने खुद ही in July 2025 he himself said कि these are the 5-point doctrines on terrorism which India has developed whenever any terror attack would happen in India. So उस केस में हम लोग इन 5-point doctrines के हिसाब से we would be taking actions. पहला क्या है? First, terrorists are not to be treated as proxies. पहले हम लोग को क्या लगता था कि terrorists are proxies of Pakistan. अब सीधा समझो कि it's an attack by Pakistan itself. They are not to be treated as proxies. Second, cross-border terrorism to meet appropriate response. Whenever cross-border terrorism would happen, we would take appropriate response, we would take appropriate action. Third is, there will be no talks except on terrorism. टेररिज्म को छोड़कर बाकी कोई भी मुद्दे पर अभी हम बात ही नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान. विल ओनली फोकस ऑन टेररिज्म, क्योंकि अभी तो सिर्फ इंडिया में टेररिज्म का खतरा बेसिकली पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ही है. फोर्थ, इंडिया विल नॉट यील्ड टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल. इफ वी आर गोइंग फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक एंड यू आर सेइंग कि हम लोग न्यूक्लियर गिरा देंगे, सो इंडिया विल नॉट सरेंडर. एंड फिफ्थ, टेरर एंड गुड नेबरलीनेस कैन नॉट को एग्जिस्ट. Blood and water cannot flow together. ठीक है? So these are the 5-point doctrine on terrorism that you need to keep in your mind. अभी फिर से बोल रहा हूं, जो भी यूपीएससी के मेंस इस बार दे रहे हैं, कोई भी टेररिज्म रिलेटेड क्वेश्चन इस बार यूपीएससी पूछती है, so please do mention these 5-point doctrine on terrorism. One is कि टेररिस्ट जो है वो उनको प्रॉक्सी के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज देंगे. कोई भी टॉक नहीं होगा विद पाकिस्तान एक्सेप्ट ऑन टेररिज्म. एंड इंडिया विल नॉट यील्ड टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल. एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लड, खून और पानी दोनों साथ में नहीं बहेगा. ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर. ठीक है? नेक्स्ट इज इंडियाज फर्म रिस्पॉन्स टू टेररिज्म. अब मुझे नहीं पता है कि ये 3 कंट्रीज कौन थे. एक तो पाकिस्तान पक्का होगा, एक चाइना होगा, बाकी तीसरा कंट्री कौन है मुझे नहीं पता है. बट ये जयशंकर साहब का जो डिबेट था वहां से मैं लाया हूं. जयशंकर साहब बोलते हैं इंडिया रिसीव्ड ओवरवेलमिंग इंटरनेशनल बैकिंग फॉर ऑपरेशन सिंदूर. यूएन में अदर देन 3 मेंबर्स 190 मेंबर सपोर्टेड इट. Only 3 members out of 193 opposed Operation Sindoor. So that was also a victory of India at the global diplomacy level. Next is, government held dozen of high-level calls to build consensus and explain India's position. A strategic shift. पहले इंडिया का जो फोकस था, इंडिया का फोकस was on a strategic restraint. सामने अटैक कर रहा है, we would provide you dossier, आपको प्रूफ देंगे कि आपके यहां से अटैक हुआ है, समथिंग लाइक दैट. दैट वाज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट. नाउ इंडिया हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स स्टैंस फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट टू कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन. हम लोग कैलकुलेटेड रिटेलिएशन भी करेंगे, कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन भी करेंगे इन केस इफ यू वुड टेस्ट आवर पेशेंस. तो अभी डोजियर का एक्सचेंज नहीं होगा, अब विल गो फॉर रिटेलिएशन अगेंस्ट एनी टेररिस्ट अटैक्स. ठीक है? सो दिस वुड बी हैविंग मल्टीपल कंपोनेंट्स. कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन में वन इज इंटीग्रेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स भी होगा,
डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स भी होगा एंड इंफॉर्मेशनल टूल्स भी होंगे, ऑल थ्री। पहले पूरा का पूरा हमारा रिलायंस जो था वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन पे था, ठीक है, लड़ाई नहीं करने जाएंगे, बट नाउ वी हैव शिफ्टेड आवर पोस्चर टू कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन। नेक्स्ट, ट्रीट्स टेररिज्म एंड इट्स स्पॉन्सर एज इनसेपरेबल, मतलब टेररिस्ट और स्पॉन्सर्स को नाउ दे वुड नॉट बी सीन एज टू सेपरेट एंटिटीज, रादर दे आर टुगेदर इंटीग्रेटेड होल, ठीक है। रीजनल चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, क्या क्या अभी, क्योंकि मैंने बोला था प्रोस्पेक्ट है टू स्टेट वॉर का, टू स्टेट फ्रंट का, सो बेसिकली दैट कुड बी कवर्ड फ्रॉम हियर ऑल्सो। पहला प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान इज अ परमानेंट सोर, एक परमानेंट आपके लिए घाव बन चुका है। सो फर्स्ट दे रिजॉर्टेड टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल when India attacked, Operation Sindoor was launched, so at that time Pakistan resorted to nuclear blackmail, so to deter further escalation. Second is bilateral ties have been frozen and India has suspended participation in the Indus Water Treaty, and uske liye Pakistan is asking the international community to pressurize India, ठीक है। So Pakistan is a permanent source. Second is China's opportunistic maneuvering, वहां क्या है, बॉर्डर। चाइना may exploit a strategic distraction along the LAC, बॉर्डर पे चाइना जो है they may exploit a strategic distraction, आप इधर इंगेज हो पाकिस्तान के साथ, Chinese decided to invade over there, so that is another thing. Second is deepening engagement with South Asian states to counterbalance India's assertiveness, क्या बोल रहा है, you need to deepen engagement South Asian states के साथ। आपको बेसिकली अभी जैसे देखो चाइना, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना, चाइना इज डीपनिंग एंगेजमेंट विथ साउथ एशियन स्टेट्स, इंडिया ने एक एग्रेसिव पोस्चर लिया है, सो इन ऑर्डर टू कंटेन इंडिया चाइना इज डीपली इंगेजिंग विथ दीज साउथ एशियन स्टेट्स, इसमें बांग्लादेश भी आएगा, जैसे तुम्हें याद होगा बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना ट्राइलेटरल, आर यू गेटिंग, चाइना पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ट्राइलेटरल, व्हाट दीज आर, दे आर ट्राइंग टू काउंटर बैलेंस इंडियाज असर्टिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी वॉलेटिलिटी, ग्रे जोन वॉरफेयर का नाम सुने ही हो, सो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर सिग्नल्स इंडियाज रेडीनेस फॉर 5th जनरेशन वॉरफेयर, बट इट ऑल्सो एक्सपोजेस टू हाइब्रिड थ्रेट्स, जैसे कि साइबर अटैक्स, जैसे कि मिस इंफॉर्मेशन, disinformation, are you getting? So gray zone conflict, the risk of gray zone conflict is also high. Next is communal polarization, अब तुम्हें याद होगा at that time narratives were being spread, बहुत ज़्यादा पहलगाम अटैक के बाद narratives थे कि हिंदुओं का धर्म पूछ के मारा गया, so there was like communal polarization, many organizations, many parties tried to polarize it among on the basis of Hindu Muslims, ठीक है। अब जैसे कुछ ही दिन पहले एक पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था, सो डिबेट में आई थिंक प्रियंका गांधी शायद बोल रही थी, वो बोली कि 26 इंडियंस वर किल्ड, तो किसी पार्लियामेंटेरियन ने उधर से बोला हिंदू, तो सी अगेन रिस्पोंडेड नो 26 इंडियंस, सो दैट एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली दैट वुड हैपन, रिटेलिएटरी नैरेटिव्स रिस्क इन्फ्लेमिंग कम्युनल टेंशंस, रिटेलिएटरी नैरेटिव्स जो आप चलाओगे that may stoke communal passion in the country and that may disturb what you call peace in the country, country में जो peace है उसको disturb करेगा। Next is problem in regional diplomacy and maritime security in the Indian Ocean. SARC is completely paralyzed. SARC तो बिल्कुल उसको बोलते ही हैं कि jammed vehicle है, डॉक्टर एस जयशंकर, हाँ कोई मीटिंग ही नहीं है, काठमांडू के बाद कहां, काठमांडू वाला जो कैंसिल हुआ उसके बाद से कोई मीटिंग ही नहीं हुआ है। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी दैट इज आल्सो इन जियोपार्डी, इट इज फेसिंग अ स्ट्रेन ड्यू टू बांग्लादेश एंड नेपाल। नेक्स्ट इज इंक्रीज मिलिटराइजेशन एंड चाइनीज नेवल प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, मिलिटराइजेशन जो है वो भी बढ़ा है, चाइनीज का नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन में दैट हैज आल्सो गॉन अप, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड प्रॉक्सी नेटवर्क्स,
अब याद होगा तुम्हें लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, all those are proscribed organizations. So now they are renaming themselves, या now they are making new front in order to fight against India. अब जैसे रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो रियल में रेजिस्टेंस फ्रंट कोई बाहर का इंस्टीट्यूशन नहीं है, नहीं, रेजिस्टेंस फ्रंट ही तो अभी अटैक किया था पहलगाम में. सो दे आर द ऑफशूट ऑफ दीज टेररिस्ट ग्रुप्स ओनली. अब क्योंकि दे आर प्रोस्क्राइब्ड, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, इन सबको बैन कर दिया गया है, तो ये लोगों ने अपना नाम चेंज कर लिया, बोल दिया द रेजिस्टेंस फ्रंट. ये कोई और नहीं है, बेसिकली दीज आर ऑपरेटेड बाय द हैंडलर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस ओनली. ठीक है. सो जमात इस्लामी, दे रिमेन एक्टिव. नेक्स्ट इज India's new doctrine treats any future terror attack as an act of war. इंडिया का जो नया डॉक्ट्रीन है, it treats future terror attack as an act of war. Fragile neighborhood states and regional cooperation deficit. खुद देखो, right now there is a political instability in Afghanistan. देख ही रहे हो, आउस्टर के बाद, शेख हसीना के बाद there is an instability. Second is अफगानिस्तान, नेपाल में भी इश्यूज हैं, रीजनल इंस्टेबिलिटी है, एंड दिस इज अफेक्टिंग द बॉर्डर सिक्योरिटी. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देयर आर चांसेस ऑफ रिस्क स्पिल ओवर फ्रॉम तालिबान लेड अफगानिस्तान. चांसेस ऑफ कि रिस्क जो है दैट मे स्पिल फ्रॉम अफगानिस्तान. सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. सो व्हाट शुड बी डन? फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू अडॉप्ट हाइब्रिड ऑप्शंस. जैसे कि अभी आपने you have decided to go for calibrated retaliation. So calibrated retaliation should be there, but at the same time it should be complemented with back channel diplomacy. क्या बोल रहा है? Maintain a firm counter terror doctrine while avoiding escalation. जैसे कि go for retaliation, attack those terrorist organizations, but at the same time pair them with back channel diplomacy. कल जाके एक नॉर्मल वॉर शुड नॉट बिकम अ न्यूक्लियर वॉर. ठीक है. सेकेंड इज इनहैंस रीजनल कोऑपरेशन. भाई सार्क डेड है ना, बट देर आर अदर मैकेनिज्म्स. वी कैन यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ बिमस्टेक, वी कैन यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ आयोरा टू इनहैंस रीजनल कोऑपरेशन इन द रीजन. सेकेंड, प्रमोट कनेक्टिविटी इन द रीजन. जितना बांग्लादेश या और भी कंट्री को अपने साथ इंटीग्रेट करोगे, सो उतना उनके लिए डैमेजिंग हो जाएगा टू कम आउट ऑफ दैट इंटीग्रेशन, और उतना उनके लिए रिस्की होगा, कॉस्टली होगा. सो दे वुड नॉट कम आउट. आज यूरोपियन यूनियन सब साथ में आ गया है, सो ऑटोमेटिकली इट इज मोर रिस्की फॉर एनी कंट्री टू कम आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन. ठीक है. सो प्रमोट कनेक्टिविटी, प्रमोट ट्रेड, प्रमोट डिजास्टर रिजिलियंस. नेक्स्ट इज डिनाई अ स्ट्रेटजिक स्पेस टू चाइना. अभी मैंने बोला कि चाइना इज ट्राइंग टू डीपेन इट्स बॉन्ड विथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश थ्रू ट्राइलेटरल एंड अदर थिंग. सो डिनाई दैट स्पेस. कैसे? डिपेंड टाइज विथ दोज कंट्रीज, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, जहां पे चाइनीज पहुंच रहे हैं, यू शुड डिपेंड योर टाइज. ठीक है. थ्रू ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट. सेकेंड, इनहैंस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहैंस करो. सर्विलांस अलोंग द LAC टू डिटर अपॉर्चुनिस्टिक इनकर्जन. अभी मैंने बोला नेपाल साइड से, बांग्लादेश साइड से, म्यांमार साइड से टू मच इनकर्जन अकर. सो उसके लिए यू नीड टू फोकस ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. स्ट्रेंथन इंटरनल सिक्योरिटी एंड रिजिलियंस. जैसे कि अभी तुम्हें बताया कि ड्यूरिंग पहलगाम टेरर अटैक a narrative was there to polarize people on the basis of religion. Hindu Muslim narrative था ना. So basically promote communal harmony and don't promote such narratives which basically allow one religious group to be pitted against another. Next is invest in cyber defense, invest in counter radicalization. Those who are moving towards radicalization, तो उनको आपको हटाना है वहां से. सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन काउंटर रेडिकलाइजेशन. नेक्स्ट इज गो फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए जाइए, लीगल रिफॉर्म के लिए जाइए. जैसे कि अभी देखो, ये नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, द आइडिया वाज गिवन
बैक इन 2012 में ये आइडिया दिया गया था कि वी शुड बी हैविंग अ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, बट yet it is to be realized. आज तक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर हैज नॉट बीन established. So established with real time coordination. Second is modernize laws to address cross border terror financing. Laws को modernize करो so that cross border terror financing can be addressed, drone warfare can be addressed, AI driven threats, ये जो new threats हैं those can be addressed. यूज द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड सेप नॉर्म्स. ग्लोबल प्लेटफॉर्म का एडवांटेज लो, जैसे इस बार ब्रिक्स में, ब्रिक्स डिक्लेरेशन में टेररिज्म का इंडिया हैज यूज्ड इट वेरी सेलिएंटली, है ना. सो लीवरेज प्लेटफॉर्म्स लाइक क्वाड, ब्रिक्स, यूएनएससी टू आइसोलेट अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर. इनफैक्ट सुषमा स्वराज का एक स्ट्रेटजी था नेमिंग एंड सेमिंग. आर यू गेटिंग? सेम पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल लेवल. नेम लो, उनका नाम लो कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर बीइंग सपोर्टेड, प्रोवाइड एविडेंस एंड देन सेम देम. सेकंड इज गेट द यूएन कन्वेंशन ऑन टेररिज्म टू बी पास्ड, है ना. यूएन कन्वेंशन ऑन द टेररिज्म टू बी पास्ड. एक क्वेश्चन पक्का है कि यहां से इसी के आसपास रहेगा, पॉइंटर्स यही बनेंगे, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है. ठीक है. दिस आई हैव आल्सो टॉट एज पार्ट ऑफ गवर्नेंस. डिसइंफॉर्मेशन तो वहां GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है, बट डिसइंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, इट सेज दैट मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन इज द हाईएस्ट रैंक्ड शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट. अभी जो ग्लोबल थ्रेट विच इंडिया इज फेसिंग, तो उसमें जो सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म में जो सबसे बड़ा थ्रेट है, दैट इज मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन. क्या हुआ? सो ऑपरेशन सिंदूर एंड राफेल डिसइंफॉर्मेशन. आपको पता होगा कि व्हेन वी लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, सो चाइनीज गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो उनके जो साइबर एक्सपर्ट्स थे, they were running a coordinated disinformation campaign against India. ठीक है. So what is disinformation? Disinformation होता क्या है? So it is false or misleading information that is deliberately created. False या misleading information है which has been deliberately created and spread with the intent to deceive, manipulate or influence पब्लिक ओपिनियन. मैं बार बार बोल रहा था, देखो मिस इन्फॉर्मेशन में भी लास्ट टाइम मैंने डिस्टिंक्शन बताया था, मिस इन्फॉर्मेशन में जानबूझ के नहीं किया जाता है. डिस इन्फॉर्मेशन में यू डेलिबरेटली फॉल्सिफाई इंफॉर्मेशन एंड पास इट एज अ जेन्युइन इंफॉर्मेशन. तो यहां पे स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है. आर यू गेटिंग? देयर इज अ स्ट्रेटजिक इंटेंट इन डिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है. डिस इन्फॉर्मेशन इज इंटेंशनल एंड ऑफन स्ट्रेटजिक. की डिफरेंस, वो यूट्यूब पे जा रहा है. की डिफरेंस बिटवीन मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन. व्हाट इज द की डिफरेंस? दोनों के बीच अंतर क्या है? अभी बताया कि मिस इंफॉर्मेशन में डेलिब्रेट इंटेंशन नहीं है. से इफ यू आर प्रेजेंटिंग अ डेटा और वहां पे यू हैव नॉट क्रॉस चेक्ड इट, आपने वो डेटा को डाल दिया, सो दैट इज अ मिस इंफॉर्मेशन. डिसइंफॉर्मेशन में इट इज डन डेलिबरेटली, जानबूझ के दे वुड बी फैब्रिकेटिंग न्यूज टू मिसलीड वोटर्स. वो न्यूज को फैब्रिकेट करेंगे टू मिसलीड वोटर्स, ऑफन यूज्ड इन प्रोपेगेंडा, एस्पियोनेज और इन्फ्लुएंस कैंपेन्स. ठीक है. की डेटा ऑन डिसइंफॉर्मेशन. की डेटा डिसइंफॉर्मेशन पे ये पहले भी बताया था. पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर 46%. मतलब कि ज्यादातर डिसइंफॉर्मेशंस आर बेसिकली यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है. सो र्यूटर्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से द यूथ डिविडेंड ऑफ इंडिया इज फेसिंग अ ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम फॉल्स इंफॉर्मेशन. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. ठीक है. Second, over 70% of Indians
they prefer online media with nearly half relying on social platform for news. की फीचर्स ऑन डिसइंफॉर्मेशन, अभी बताया था, ये पहले ही बताया हूं. यहां पे देयर इज एन स्ट्रेटेजिक इंटेंशन, आप जानबूझ के यू वांट टू डिसेप्ट, सो देयर इज एन इंटेंशनल डिसेप्शन इन दिस केस, यू आर मिसलीडिंग. So creators know the information as false, but spread it to achieve political, financial or ideological goals. Misinformation में you do not know, आपको ये नहीं पता है कि वो इंफॉर्मेशन फॉल्स है, बट डिसइंफॉर्मेशन में यू आर अवेयर दैट द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स. सेकेंड इज इमोशनल मैनिपुलेशन, दे डेलिबरेटली टारगेट इमोशंस, आपके फियर को टारगेट करेंगे, एंगर को टारगेट करेंगे, आइडेंटिटी को टारगेट करेंगे, रिलीजन को टारगेट करेंगे, पैट्रियोटिज्म को टारगेट करेंगे, टू बाईपास रैशनल थिंकिंग. जनरली व्हेन पीपल इज अपील टू देयर आइडेंटिटी, so they get emotional और violent outburst होता है ना. Next is a strategic use, used in information warfare, used in propaganda to influence operations, so that basically sow confusion, that also polarize society into Hindu and Muslim or Hindu and Sikh or Sikh versus Christian, something like this. Mixed truth, disinformation में कुछ एलिमेंट ट्रुथ को वो जानबूझ के डालेंगे सो दैट इट अपीयर्स टू बी रियल, सो दे मिक्सेस रियल फैक्ट विद डिस्टॉर्शन, क्योंकि उसको रियलिस्टिक दिखाना है ना, सो दे वुड मिक्स सम ऑफ द ट्रुथ विद डिस्टॉर्शंस. ठीक है, सो हार्डर टू डिटेक्ट. नाउ व्हाई इंडिया इज मोर वल्नरेबल, सबसे पहला रीजन है डिजिटल फुटप्रिंट. More than 900 million internet users are in India, और उसमें हाई पेनिट्रेशन, हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन है, चीप डेटा है, एंड दैट मेक्स ट्रेसिंग कंटेंट वेरी मच डिफिकल्ट. सेकेंड इज मल्टीलिंगुअल एंड डिवर्स सोसाइटी. अब नेशनल अभी हमारा जो कैपेबिलिटी है उतना डेवलप नहीं है, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइट नाउ टारगेटिंग डिसइंफॉर्मेशन इन इंग्लिश, disinformation in Hindi, but there are so many national language, or many a times you run localized propaganda. तमिलनाडु में तमिल वाले, केरला में मलयाली में, बाहर मतलब different states में different, so it bypass national scrutiny. Next is political polarization and electoral sensitivity. World Economic Forum का global risk report है, it says India ranks 1 globally in vulnerability to misinformation during elections. इंडिया का जो रैंकिंग है that is 1 in vulnerability to misinformation during elections. Next is declining trust in traditional medias. Our trust in traditional media is declining and we are moving towards social media. न्यूज के लिए भी अभी न्यूज लोग बहुत कम होता है कि जो ऑथेंटिक न्यूज चैनल है उनको देखते हैं, क्योंकि नाउ देयर इज नो ट्रस्ट, को लगता है कि ये मीडिया बिका हुआ है, तो उससे अच्छा है दे आर फोकसिंग ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स. यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो डिफरेंट मीडिया चैनल्स आ रहे हैं, है ना. सो बेसिकली अनवेरिफाइड कंटेंट स्प्रेड्स रैपिडली. यूट्यूबर्स जो हैं वो अनवेरिफाइड कंटेंट जल्दी से डालना है, यूट्यूब पे वायरल करना है, एंड कॉन्सिक्वेंटली दोज आर बिकमिंग वायरल. लोगों को लगता है कि ये सही है. नेक्स्ट इज फॉरेन इन्फ्लुएंस कैंपेन. ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मैंने बोला था पाकिस्तान एंड चाइना बोथ ran coordinated disinformation campaign against India, so they used AI generated content. Impacts क्या है डिसइंफॉर्मेशन के? फर्स्ट इम्पैक्ट इज डेमोक्रेटिक एंड इंस्टीट्यूशनल डैमेज. याद होगा तुम्हें बार बार when Trump became president, second time when he did not became president, I'm talking about in 2020-21, तो उस समय every time he was accusing the Democrats of stealing votes. तो उसमें क्या होगा, that basically अगर पॉलिटिशियन ऐसे बोल रहा है, so that undermines voter trust. बार अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं या डिफरेंट और पॉलिटिशियंस हैं कि बेसिकली बीजेपी इज स्टीलिंग वोट, तो वो भी गलत है. व्हाई? इट बेसिकली अंडरमाइंस वोटर ट्रस्ट. जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज दैट वुड अंडरमाइन वोटर ट्रस्ट इन द प्रोसेस. ठीक है, बहुत सारे वोटर्स को लगेगा अरे ये अगर सही है तो उनको तो ये लगेगा कि फिर पार्टिसिपेशन इज मीनिंगलेस.
है ना. सेकंड इज गवर्नेंस, इट वीकेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड इरोड्स ट्रस्ट इन लेजिटिमेट न्यूज. सेकंड इज सोसाइटल पोलराइजेशन एंड वायलेंस, इट फ्यूल डिवीजन, it incites communal violence, it targets vulnerable population. So this is another important impact. Next is public health risk. तुम सुनते होगे कि बहुत सारे communities they don't want to take any vaccine. So why? Vaccine hesitancy develop because of disinformation. अभी एक कैंपेन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट बढ़ गया है those who have taken COVID vaccine. So that what is that? That is a misinformation, है ना. कोई प्रूफ तो है नहीं. So AI generated health hoaxes. Next is geopolitical and security threats. Operation Sindoor and China and Pakistan, that was another thing. Climate disinformation, fossil fuel lobbies. Abhi Trump again and again saying कि climate change is not happening. Are you getting? Fossil fuel, जो those who are supporter of fossil fuel lobbies, they are saying कि climate change is not happening due to fossil fuel. ठीक है. Next is emotional manipulation, exploits emotion. वो आपके fear को trigger करेंगे, आपके religion को, identity को trigger करेंगे. Creates echo chamber. Say you are biased against something, ABCD. उसी बात को मीडिया से तुम सुन लिए, फिर कोई थर्ड पर्सन बोल दिया, फिर एक और मीडिया से सुन लिए. सो बेसिकली योर बायसनेस वुड फर्दर गेट इंट्रेंच्ड. होना क्या चाहिए कि आपके बायसनेस को हटाना चाहिए, लेकिन योर बायसनेस इज गेटिंग इंट्रेंच्ड. सो किसी चीज को तुम नफरत करते हो तो वो और नफरत बढ़ता जाएगा. क्रिएट्स एन एको चैम्बर. लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑन डिसइंफॉर्मेशन. तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पहले भी बताया हूं. सो इट एड्रेस्ड फेक न्यूज एंड मॉब वायलेंस. फेक न्यूज के केसेस में, मॉब वायलेंस के केसेस में पब्लिक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है दे नीड टू प्रोएक्टिवली रजिस्टर एफआईआर. ठीक है. emphasized preventive, remedial and punitive measures for hate speech and viral misinformation. Second is Kunal Kamra case right now pending in Supreme Court. Kunal Kamra case mein, so yes, fact check unit has been declared as unconstitutional by Bombay High Court, and right now this matter is pending in Supreme Court. What are the measures to tackle misinformation in India? First is Global Risk Report 2025. It talks about AI Oversight Council. Basically क्या कहता है कि जो जनरेटिव AI है, एल्गोरिथमिक बायसनेस है, इनको मॉनिटर करने के लिए मेक अ सेपरेट बॉडी कॉल्ड AI Oversight Council. हर कंट्री का अपना AI Oversight Council होना चाहिए, which can monitor generative AI and which can basically target algorithmic biasness. Second, regulatory and legal reforms में we can introduce new style framework. Already उनका डिजिटल सर्विसेज एक्ट आया है टू रेगुलेट प्लेटफॉर्म्स एंड कॉम्बैक्ट फीमी, फॉरेन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन एंड इंटरफेरेंस. अभी जो चाइना और पाकिस्तान कर रहा था इंडिया के खिलाफ ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, दैट कम्स अंडर फीमी, फॉरेन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन एंड इंटरफेरेंस. सो इन ऑर्डर टू काउंटर they have, European Union have brought their own Digital Services Act. उसी तरीके से we also need to have some act. Next is a strength IT rules. IT rules को strengthen करो. Clear analyzation होना चाहिए disinformation के लिए, या pass bill against disinformation. Learn from the best. Finland के बारे में बताया था. They are having rank 1 in media literacy index for several years. क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही, प्राइमरी स्कूल से ही उन्होंने बताया है कि व्हाट आर यस फेक, व्हाट आर नॉट फेक, कौन सा जेन्युइन सोर्स, विच आर नॉट जेन्युइन सोर्स, एंड कॉन्सिक्वेंटली ड्यूरिंग कोविड टाइम ऑल्सो बहुत सारे फेक न्यूज. इनफैक्ट नॉट ओनली कोविड, ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर अभी जब हो रहा है, सो रशिया हैज लॉन्च्ड अ कोऑर्डिनेटेड अटैक फिनलैंड, लेकिन पीपल को उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा बिकॉज दे वर हैविंग गुड मीडिया लिटरेसी. Public awareness and digital literacy, this is another important part. बिना जब तक आप कम्युनिटी तक आउटरीच नहीं कर रहे हो, unless and until you are not making outreach to community, then this cannot be countered. So use local language to reach to
rural areas. Second, a school and university program. School and university program में to help youth identify disinformation. Youth को आपको बताना होगा how they can identify disinformation. उनको पता तो चलना चाहिए, और उसके लिए क्या करो, स्कूल में ही आप कोई करिकुलम लाओ, जैसे फिनलैंड का है, यू कैन ब्रिंग दैट. गो फॉर ग्लोबल एंड क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन. बहुत सारा जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है दैट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. ठीक, तो उसके लिए गो फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन, कोलिशंस फॉर साइबर सिक्योरिटी, शेयर थ्रेट इंटेलिजेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. एक कोलिशन वैसा है. प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एंड विसल ब्लोअर्स फ्रॉम such things. Next, ethical and institutional safeguard. You need to have a balance between surveillance and rights. You cannot impose blanket surveillance without protecting rights. दोनों को बैलेंस करना जरूरी है. Laws does not become tool for censorship. ठीक है. Judicial overreach. To review overreach in content regulation. If government has decided to regulate content, तो उस केस में JR शुड बी अलाउड. ग्लोबल फ्रेमवर्क कॉम्बैट डिसइंफॉर्मेशन, ये दोनों काफी अच्छा है. रेकजाविक डिक्लेरेशन काउंसिल ऑफ यूरोप का डिक्लेरेशन है, एंड सेकेंड इज UN ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी. ठीक है. सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय UN सेक्रेटरी जनरल, एंड दिस इज रूटेड इन ह्यूमन राइट्स, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इसको याद रखेंगे, अगर डिसइंफॉर्मेशन क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों डिक्लेरेशन को लास्ट में वे फॉर्म में बताना है. ठीक है. ऑल दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मेंस का इस बार एग्जाम देंगे, आर्यन, एवरीवन, रोहित, निकिता, सो प्लीज कीप इन योर माइंड बाबू वन थिंग, इस बार अगर एग्जाम में आएगा सो दीज प्रिंसिपल्स यू नीड ऐड. ठीक है. सो इट कॉल्स गवर्नमेंट and take companies and civil society to refrain from amplifying harmful content. जो harmful content है, don't amplify it. उसको और share मत करो, उसको और promote नहीं करो. Ensure timely access to accurate information. अगर disinformation है तो उसके खिलाफ accurate information should also be made accessible to the people. तो ये बहुत important global principles हैं for information integrity. उसके अलावा रेकजाविक डिक्लेरेशन है, इट स्ट्रेंथन एफर्ट्स अगेंस्ट प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन, प्रमोट एथिकल जर्नलिज्म एंड मीडिया लिटरेसी. अब एथिकल जर्नलिज्म अगर प्रमोट नहीं करोगे तो क्या होगा, आप बन जाओगे द नेशन वांट्स टू नो. ठीक है. तो प्रमोट एथिकल जर्नलिज्म, समझ गए ना. नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट. ग्लोबल केस स्टडी सक्सेसफुल एग्जांपल सबसे अच्छा तो फिनलैंड का ही लगा. फिनलैंड का जो मीडिया लिटरेसी मॉडल है, दे बेसिकली सक्सेसफुली फाउट अगेंस्ट रशिया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन. सेकेंड इज न्यूजीलैंड का कोविड-19 रिस्पॉन्स. कोविड-19 के टाइम देयर वाज नॉट एट ऑल एनी वैक्सीन हेजिटेंसी. In fact, most of the New Zealand people, they were supporting the government effort. Reason was government prioritized transparent communication. कितना लोग का डेथ हुआ है, कितने लोग एक्टिव हैं, सब कुछ communication on a real time basis it was provided, and that led to trust building. ठीक है. Consequently, it developed high public trust, and they were having complete faith in government कोविड-19 रिस्पॉन्स. आपको याद होगा कि उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी, शी बिकेम वेरी मच फेमस फॉर दिस. ठीक है. WHO EPI विन प्लेटफॉर्म, इट लोकलाइज्ड काउंटर मैसेजिंग. अब ऑलरेडी आई हैव फिनिश्ड इंटरनल सिक्योरिटी, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट, these are the other topics which are important from internal security. एक बार सुन लीजिए. फर्स्ट इज understand how India has reinvented its security doctrine. Compare it from Kargil to Pahalgam. ठीक है. So try to understand how the security doctrine of India has evolved. ठीक है. अभी मैंने बताया है कुछ आपको, strategic restraint से अभी हम कहाँ गए हैं. So keep that framework in your mind. वो रखोगे, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपको थोड़ा खुद से माइंड लगाना है. सेकेंड, रीस्टोरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इन मणिपुर. थर्ड,
China's advancement in drone and hypersonic technology and impact on India. ये सिर्फ चाइना का ही नहीं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रोन टेक्नोलॉजी फिर से दे दिया है. सो ये दोनों को साथ में आके पढ़ेंगे. मुझे अंदर से ये लग रहा है कि इस बार शायद ड्रोन पे एक क्वेश्चन रहे. नेक्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड. आज से नहीं, काफी पहले से हैव बीन टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, लेकिन अभी तक कंप्लीटली हैव नॉट रियलाइज्ड. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट चेंज दैट इंडियन आर्म फोर्सेज नीड. नेक्स्ट इज सोशल इंपैक्ट्स ऑफ डीप फेक्स. डीप फेक्स होते क्या हैं एंड व्हाट आर देयर सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट, सब कुछ. इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस यूनिवर्सिटी. इंडिया इज नॉट हैविंग एनी स्टैंड अलोन डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है. एंड नेक्स्ट इज पीएमएलए, इंक्लूजन ऑफ लेस सीरियस ऑफेंसेज. राइट नाउ इट इज आल्सो सुप्रीम कोर्ट मैटर, सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज आर द 7-8 अदर टॉपिक्स. इन एडिशन टू दैट, नक्सलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर. इस साल के लिए नक्सलिज्म मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, और बाकी ये 7-8 टॉपिक कर लीजिए. दैट वुड बी ऑल